صبح سویرے وینس کے ساتھ سنہری روشنی کے ساتھ سائے کا پیچھا کرتے ہوئے سجید حسین خوشی کے ساتھ آپ کے اور میرے لیے سورج کی روشنی کا اشارہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صبح سویرے میں ساجد حسین اور طاہرہ خان کا السلام علیکم. اور صبح سویرے ہفتہ اور اتوار آپ دیکھتے ہیں, اور ہفتہ اور اتوار کو ہم کوشش کرتے ہیں آپ کے لیے انفارمیٹیو شو لے کر آئیں. پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, حکومت وقت کیا کر رہی ہے, پوری دنیا اور مسلم امہ مڈل ایسٹ میں کیا ہو رہا ہے. کوشش کریں گے اوور آل ہر ہفتے جس طرح ہم آپ کو ایجوکیٹ کرتے ہیں. اور سانحہ گل پلازا کے بارے میں بھی ہم ڈسکس کریں گے. اور گل پلازا کا سانحہ بھی ہوا پچھلے ہفتے, اور یہ بہت افسوسناک واقعہ ہے یہ. ویسے اکثر چونکہ میں کوشش کرتا ہوں ساجد حسین ہر کسی کی اپنی تھاٹ ہے کہ میں زیادہ تر اپنی ٹرمینالوجیز اور اپنے ایکسپیرینس اور اپنی چیزیں شیئر نہ کروں, یہاں آئے ہوئے لوگوں سے بات کروں. لیکن ایک چیز تو میں ہر جگہ پہ کہتا ہوں, چاہے وہ کہیں اگر مجھے تقریر کا موقع مل جائے کسی ایونٹ میں, سانحات پر ہی ہم اکثر بات کرتے ہیں. ہم ترقی پر بات کم کرتے ہیں, ہم خوشحالی پر بات کم کرتے ہیں, ڈیولپمنٹ پر بات نہیں کرتے. سانحات بہت ہم مہینوں لگا دیتے ہیں. ہونی چاہیے بات. پھر سانحات پر سیاست ہوتی ہے, پھر تنقید ہوتی ہے, پھر میڈیا کچھ دن مزے لیتا ہے, اس کے بعد سب ختم. جو گیا وہ واپس نہیں آئے گا. آپ 1 کروڑ اس کو دے رہے ہیں, اس کا بیٹا اس کا بھائی آپ اس کو نہیں دے سکتے. بالکل ایسا ہی. تو سانحات سے بچنا چاہیے, اور سانحات کی روک تھام کے لیے حکومت وقت کیا کر رہی ہے یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے. کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ آپ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور جھوٹ بھی بولتے ہیں, اور اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ وہ سچ لگنے لگ جاتا ہے. تو اور پھر اچانک کہتے ہیں نا عزت و ذلت کا مالک میرا پروردگار ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ کے کپڑے اتر جاتے ہیں سر, آپ کی عزت تہس نہس ہو جاتی ہے. اچھا, سب سے بڑھ کر سانحہ جو ہوا اس کے بعد کی جو چیزیں ہیں نا وہ صحیح نہیں ہیں ہمارے ملک میں. اگر میں دیکھوں کہ ہو گئی چیز جو ہونی تھی, اس کے بعد کے جو معاملات ہیں, جو چیزیں ہو سکتی تھی, جتنا بچایا جا سکتا تھا, اس میں بہت لیزی ہے, بہت زیادہ. آپ کو مجھے اس تو پوری دنیا دیکھ رہی ہے, اور بات وہ کرنی چاہیے جو حقیقت پر مبنی بات ہو. کچھ ایسے مناظر جو ہم زندگی میں پہلی بار دیکھتے ہیں. یس. ایک ایسا منظر میں نے اس گل پلازا میں پہلی بار دیکھا. وہ منظر ایسا تھا کہ وہ کہتے ہیں نا جی, بچے نہ سنیں اور جو نرم مزاج لوگ ہیں وہ ہٹ جائیں اسکرین سے. وہ یہ تھا کہ لوگ زبردستی گھس رہے تھے اس بلڈنگ میں. یس. اچھا, ریسکیو کہہ رہا تھا یہ حکام کی یہ بلڈنگ گر جائے گی کیونکہ یہ جل چکی ہے, یہ اب اس کی بنیادیں ہل چکی ہیں, اس کا ایک حصہ گر چکا ہے, اب یہ کبھی بھی بلڈنگ گر سکتی ہے. لیکن لوگوں نے کہا ہمارے پیاروں کی ہڈیاں اور باقیات باقی ہیں, وہ ہم چننے جا رہے ہیں. اور وہ گٹھڑی میں ہڈیاں لا لا کے سب بھاگ رہے ہیں, اور وہ جا کے ان کو دفن کر رہے ہیں, آخری رسومات ادا کر رہے ہیں. یہ میں نے اپنی لائف میں پہلی بار سین دیکھا کہ صرف ہڈیاں اور گٹھڑیوں میں باندھ کے لی جا رہی تھی. تو افسوس کا مقام ہے سر. ایک کمرے میں 8-10 دکان کہیں 8-10 لیڈیز چھپ رہی تھیں, وہ بھی جل گئی. ایک خاتون پریگننٹ تھی, بہت سارے لوگ بیسمنٹ میں بھاگ گئے, وہ سارے جل گئے. 30 لاشیں ایک ساتھ نکالی گئیں. آگ لگی, اس کے بعد کوئی آیا نہیں. 1 گھنٹے بعد آئے, اور جو آئے تو جس طرح ہم پاکستانی اکثر بات کرتے ہیں کہ ہماری کوئی بھی چیز کمپلیٹ ہی نہیں ہوتی. حکومت کا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا. وہ جو گاڑیاں ہی ان کا پانی ختم ہو رہا تھا. اچھا, پانی کے علاوہ جو پارکنگ نہیں, میں نے یہ بھی سنا ہے پارکنگ میں اتنی گاڑیاں تھیں کہ اس گاڑی کو جگہ ہی نہیں مل رہی تھی کہ وہ جا کر فوری طور پہ فائر کو جو ہے ختم کریں. تو یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. ٹیکنالوجی کی بات ہم کرتے ہیں نا, اور یہاں پہ لوگ آتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ میں جی AI ایکسپرٹ ہوں, اور پھر پاکستان ٹیکنالوجی میں بہت آگے جا رہا ہے. ہمیں اسی پروگرام میں ہم نے بتایا تھا کہ ہم دفاع میں کتنا آگے جا رہے ہیں. ہم اچھے ڈرونز بنا رہے ہیں, ہم ایسے ڈرونز بنا رہے ہیں جو خود کتنا پانی لے کے جا سکتے تھے, اور وہیں پہ, اور پانی تو چھوڑیں, بہت سے ایسے کیمیکلز ہیں
जिसको आप ड्रोन भेजते तो वो गिरा सकते थे, फिर आप एयरफोर्स से भी मदद ले सकते थे, Yes. बहुत कुछ हो सकता था, जानें बच सकती थी, काफी हाँ, सारी जानें बच लेकिन सकती थी, बहुत अच्छे तरीके से चीजें हो सकती थी, इन लेकिन सब के नहीं। आड़े में एक चीज आ गई सर, जिस पर अब सियासत हो रही है, और वो थी सर 18th अमेंडमेंट। अब जो अहले कराची है वो ये कह रहा है कि इन सब के आगे आ गई थी 18th अमेंडमेंट। क्या इस सानहे को बहाना बनाकर, तो सानहा तो हो गया ना, अब इस पर सियासत की जा रही है। वो कहते हैं ना जी, असल निशाना अब 18th अमेंडमेंट है, शायद इसको ख़त्म किया जा रहा है। तो 18th अमेंडमेंट को ख़त्म ना करें, मज़ीद इसमें अमेंडमेंट हो सकती हैं या इसको हम ग्राउंड तक ला सकते हैं, लेकिन ये 18th अमेंडमेंट को अगर आप स्टडी करें, क्योंकि मैंने इसको बड़ा डीपली स्टडी किया है, तो ये सर सूबों के लिए एक बहुत बड़ा वेपन है, और ये वेपन जब आप सूबों से छीन लेंगे फिर बहुत मसले होंगे, और शायद फिर कोई आने वाली हुकूमत इस तरह की अमेंडमेंट न पास करवा सके। तारुफ करवाते हैं जी, मेहमान हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में, और हम कोशिश करेंगे ओवरऑल आज एजुकेशन की इम्पोर्टेंस पर भी हम बात करेंगे कि तालीम कितनी ज़रूरी है हमारे माशरे के लिए, और तालीम से ज़्यादा तरबियत कितनी अहम है। तो एक प्रोफेसर हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, और जब मैं उनका प्रोफाइल स्टडी कर रहा था तो चाहे दाऊद यूनिवर्सिटी, क्या PhD, पता नहीं कहाँ कहाँ से उन्होंने डिग्रियां ली हैं, फिर LLB भी आपने किया हुआ है। तो जब मैंने स्टडी करना शुरू किया, मैंने बोला रुक जाओ साजिद, आए हैं सनम, उनसे पूछ ही लेते हैं कि आप शायद पैदा ही प्रोफेसर बनने के लिए हुए थे। हमारे साथ मौजूद है जी इंजीनियर मोहम्मद अली शेख साहब, को खुश आमदीद करें। अस्सलाम वालेकुम। सर, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए, और आपके साथ आपके स्टूडेंट भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो हमारे मास्टर शॉट में अब आप इन सबको देख सकते हैं, ये स्टूडेंट्स को भी सर, आपको भी हम खुश आमदीद कहेंगे, आपको भी खुश आमदीद कहेंगे। मैं ज़रा स्टूडेंट है ना, अभी जब आपके आगे स्टूडेंट लगता है, तो पहले मैं जब आया तो मैं इनके प्रोफाइल को देख रहा था, फिर मैंने कहा लीव इट, ये खुद बताएंगे ना ये क्या कर रहे हैं। पहले इधर आते हैं आप पर, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद फाइक, और मैं कराची पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ। करंटली मैं एक स्टूडेंट हूँ एक प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में। मेरा बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस गोइंग ऑन है, ठीक है, तो मैं उसके अभी 5वें सेमेस्टर में एनरोल हूँ। ओके जी, इसके अलावा हमारी जो एजुकेशन है इस वक्त, उस पर काफ़ी नज़रसानी करने की ज़रूरत है। ठीक है बिल्कुल जी, सही। क्या? जैसे कि आज का जो हमारा बच्चा है वो ऐसे है कि बस किताबी कीड़ा, ठीक है, रटिफिकेशन, हाँ, ग्रेड्स, ratification, मार्क्स, इस मतलब सारी इन चीज़ों के पीछे हो। जबकि अगर देखा जाए असल में तो ये सारी चीज़ें रियल लाइफ में मैटर नहीं करती। ग्रेड्स, कोई आपसे आपका ग्रेड, आपकी मार्कशीट, आपके मतलब स्कोर्स नहीं पूछता। हर कोई आपकी पर्सनैलिटी को जज करता है कि आपने लाइफ से क्या सीखा है, कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे चलते हैं, ये चीज़ें मैटर करती हैं। दुनिया चेंज हो रही है सर। Yes, सुने, दुनिया चेंज हो रही है। आज के दौर के Gen Z से ये सुनकर ये मुझे दुनिया बहुत चेंज मजा हो रही है। आ रहा है, चले अच्छा लग रहा है। आप सर। जी, मेरा नाम मोहम्मद हुमायूं है। ठीक है, मैं भी एक प्राइवेट सेक्टर में, जैसे कि ये मेरा क्लासमेट है। अच्छा, क्या बात जी है। बिल्कुल, मैं भी कंप्यूटर साइंस ही कर रहा हूँ। और जैसे फाइक ने आपको बताया कि डिग्रियां मैटर नहीं करती आज के दौर में, खास करके AI के दौर में डिग्रियां तो बिल्कुल मैटर नहीं करती। आपके पास जितना स्किल है उतना ही आप डोमिनेंट है। जैसे आपने जो वाकया हुआ हमारे पास, ये साना गुल जी, प्लाजा, गुल प्लाजा, उसमें जैसे आपने कहा कि टेक्नोलॉजी की बहुत ज़रूरत है हमारे पास। सारी दुनिया जो है ना AI को एडॉप्ट कर रही है, इम्प्लीमेंटेशन कर रही है, सारे कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान सिर्फ डिफेंस के ऊपर या फिर ऐसे ही है कि सर ने भी बताया आपको कि एयरफोर्स की हमें नीड थी वहाँ पे, वो बुझा सकते थे आग को, कि हमें चाहिए कि हम AI को इम्प्लीमेंट करें, बच्चों को AI के स्किल्स दें। और उसके साथ साथ मैं भी बिल्कुल AI की स्टडी कर रहा हूँ। क्या बात आपका है। कंप्लीट नेम? मोहम्मद हुमायूं। मोहम्मद हुमायूं, ठीक है। मोहम्मद हुमायूं के पास आते हैं, एक और स्टूडेंट हैं जी सर, आपका गुड नेम? मेरा नाम वसीम राजा हुसैन है। ठीक है, मैं भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, बैचलर इन कंप्यूटर साइंस कर रहा हूँ, 5th सेमेस्टर में हूँ। मैं इनका क्लासमेट ही हूँ। क्या बात है, जबरदस्त। तीनों क्लासमेट हैं। जी, जी, अब आपने एक चीज़ नोट नहीं की, हमने इनके जो प्रोफेसर हैं, या ये कहें कि बाप हैं इनके,
तालीमी बाप Yes, कहा जा सकता है। जो कि इनको जीने का ढंग सिखा रहे हैं। रूहानी बाप। हाँ, और ये वो दर्जा है कि बदकिस्मती के साथ हमारे यहाँ खो चुका है। अब जो मैं सेंटेंस बोलूँगा और फिर हमारी वो कहते हैं ना गुफ्तगू का आगाज़ होगा ऐसा कि इंजीनियर साहब, शेख साहब बोलेंगे साजिद भाई ये क्या कह दिया आपने। इनकी हम थोड़ी बात कंप्लीट कर लेते चले हैं। आप पहले ज़रा बताएं अपने थोड़ा सा बारे में। बताएं अपने बारे में। अच्छा, तो मैं कंप्यूटर साइंस कर रहा हूँ और जैसे कि हम सबको मालूम है कि दुनिया जो है वो तरक्की की तरफ बढ़ रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे कराची में एआई तकरीबन आ चुका है, उधर Yes. टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी है, मगर हमारे जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पर थोड़ा टेक्नोलॉजी कम है। कम है, बिल्कुल सही। तो हमें चाहिए कि हम वहाँ पर भी थोड़ी नज़रसानी करें, रेदर देन कि हम सिर्फ कराची को देखें या शहर को देखें। वहाँ पर भी एआई को आना चाहिए, वहाँ पर बिल्कुल भी सही। टेक्नोलॉजी आनी चाहिए। लाएगा कौन? आप और हम ना। जी बिल्कुल, तो आप इतनी विल रखते हैं? इंशाल्लाह। अच्छा हम जरूर चले लाएंगे। शेख साहब की बात है। शेख साहब वो एक हम जब स्टूडेंट थे तो हम ये सुनते थे कि जो कुछ नहीं होता वो शायर होता है, और नाउ डेज क्या ये सूट करता है कि जो कुछ नहीं होता वो टीचर होता है? Yes, ये सुनने को मिलता है जब हमें। मैंने ये टीचर से कहा तो उसने कहा साजिद भाई ये ज्यादती नहीं है। मैंने बोला बिल्कुल ज्यादती है, यही तो मैं कह रहा हूँ। ये मैं कह इसलिए रहा हूँ कि हुकूमत वक्त इस चीज़ को देखे कि जो आपकी नस्लें संभाल रहा है आपने उसका मकाम क्या कर दिया है। आपने इतने तालीमी इदारे बना दिए हैं या बनाए जा रहे हैं। आप और हम इसी सोसाइटी का हिस्सा हैं ना, माशरे का हिस्सा हैं। फ्लैटों में 2 कमरों में, और फिर एक बच्चा अभी मैट्रिक करता है उस पर टैग लगा दिया जाता है कि ये टीचर बन चुका है। फिर Yes. एक इंटर वाला बच्चा आता है, ये टीचर बन चुका है, और वो फिर जाता है, उसकी सैलरी बांधी जाती है, जी आपके 4,000 रुपये, जी आपके 6,000 रुपये, आप टीचर बन गए, आप इन बच्चों को पढ़ाएं। तो अभी तो वो खुद स्टूडेंट है। तो हमने मयार इतना क्यों नीचे गिरा दिया शेख साहब? पहले जी थैंक यू वेरी मच, आपने हमें इनवाइट किया और आपने हमें मौका दिया कि हम अपने ख्यालात का इजहार करें। देखिए ये बात आपकी बिल्कुल सही है। मैं तो कहता हूँ कि कभी कभी जो है स्टूडेंट से ज़्यादा हमें टीचर्स की एवोल्यूशंस करनी चाहिए। Yes. ठीक है, क्योंकि ऐसा ही है बिल्कुल। क्योंकि एक टीचर जो है वो लातादाद स्टूडेंट्स को जो है वो तैयार करता है। ये बात है, हमने देखी है कि बस वो कहते हैं कि कहीं भी कोई नहीं है तो ये उनके साथ ज्यादती है, लाइक यू, कि जिन्होंने अपनी आधी ज़िंदगी तो पढ़ने में गुजार दी यार, और फिर उनके साथ आप ऐसा आदमी खड़ा कर दो कि जिसको कोई नो हाउ नहीं है, और फिर वो इनके साथ खड़ा हो जाए, तो ये खुद सोचेंगे यार ये क्या हो गया, है ना। मैं तो ये कहूँगा कि ये स्टूडेंट्स के साथ नाजायज़ी नहीं है, मैं कहूँगा ये मुआशरे के साथ नाजायज़ी है। मैं तो इसको यही कहूँगा। तो और स्पेशली एक और चीज़ जो मैंने देखी है, आपने मुझे बहुत बड़ा प्रोफेसर बना दिया। देखिए हम बच्चियों की तालीम पे वो तवज्जो नहीं देते। अगर आप मेडिकल साइंस को स्टडी करें तो एक मेल के कंपैरिजन में एक फीमेल की एजुकेशन ज़्यादा बेटर करती है आने वाली जनरेशन के लिए। बहुत बड़ा टॉपिक है मेडिकल साइंस, बहुत इसको वो करती है। तो मेरे ख्याल में हम बच्चियों को वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देते जो हम एक उसको देते। मेल डोमिनेंट सोसाइटी है। मैं ये वालदेन को और जो है स्पेशली या जो अर्ली एज में बच्चियों की शादी हो जाती है उनके हस्बैंड्स को ये मैसेज कन्वे करूँगा कि कभी भी आप उसको जो है आप एजुकेशन से ना रोकें, आप उनको। मेल डोमिनेंट सोसाइटी आपने खुद जिक्र किया ना, तो फिर इस सोसाइटी पे भी तो एक लेटर मूड में तनकीद करते चले ना कि हम जल्द से जल्द ख़वातीन की हेरासमेंट, और अभी वो मैं कुछ ख़बरें पढ़ रहा था, सिंध के एक शहर में खातून को वो ब्लेड के साथ उसके फेस पर बड़े निशानात मुझे मिले, फिर उनके साथ ज़्यादती, फिर वो कातिल नहीं था पकड़ा गया, फिर उसको भी पकड़ लिया गया। तो हम सिर्फ बातें ना करें, हम खुद से वैल्यू ऐड करें कि हम कर क्या सकते हैं अमली तौर पर। माना मैंने कि बड़ी घबराहट है, बड़ी खामोशी है, खौफ है कि वडेरे का बेटा और वडेरा मुझे मेरे ऊपर FIR मुकदमा करवा देगा, या मुझे कोई पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का कोई प्रेशर ना आ जाए कि ये बात नहीं करनी थी, आपने कैसे कर दी। इस सीट पर बैठे हुए बहुत सारे हमारे मीडिया के दोस्त बड़े कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं, कहते हैं यार क्या करें। तो जितना जिसका दिल गुर्दा है या जितनी
जिसको वसत है बात करने की तो आप करें ज़रूर, आप अपनी सीट का हक अदा ज़रूर करें। और फिर जितने मेल हजरात हैं वो सर ख़वातीन का ख्याल करें, वो इसलिए भी ख्याल करें कि आपके घरों में भी ख़वातीन हैं। यस, ऐसा कोई घर नहीं है कि जिसमें खातून ना हो, ऐसा कोई बंदा नहीं है कि जो कहे कि नहीं जी। तो हर आदमी इस दुनिया में आता है, तख्लीक हुई है, तो आप माँओं की, बहनों की, उनकी इज़्ज़त करें, क्योंकि कोई सबकी माएँ सांझी होती हैं सर, सबकी इज़्ज़तें सांझी होती हैं, सबके बाप एक जैसे ही होते हैं। तो जब ये हम सब, तो फिर हम अचानक छोटी सी जहनीत का मुजाहरा कर कर हम बहुत कुछ गलत कर जाते हैं। मैंने तो ऐसे भी नाअहल और मतलब मैं वो सेटेलाइट टीवी पे बैठ के मैं उनके लिए क्या अलकाबात यूज़ करूं, कौन से वर्ड सेलेक्ट करूं, मैं ये सोचने में परेशान हूं कि वो तो उन बच्चियों के पीछे ही लग जाते हैं। अबे भाई खुदा का खौफ करो यार, कोई और धंधा काम वाम नहीं है तुम्हें। तो ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद थैंक गॉड वफा ले ले। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। बाद खुश आमदीद। और हम बात कर रहे थे जी तालीम पर, तरबियत पर और वुमेन एम्पावरमेंट पर, हम बात कर रहे थे गुल प्लाज़ा पर, हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की तरक्की खुशहाली पर और 18वीं तरमीम पर। अब हुकूमत वक्त क्या करेगी? और MQM पाकिस्तान के और फेडरल मिनिस्टर ऑफ हेल्थ मुस्तफ़ा कमाल साहब ने भी जो डिमांड की है कि कराची को वफाक के हवाले किया जाए। अच्छा, ये जो सेंटेंस है, ये जो मुतालबा कहें, ये मुतालबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत थी तब भी किया गया था। मुझे याद है कहा गया था कि जिना हॉस्पिटल और कुछ इदारे वफाक को दे दिए जाएं। होता क्यों है, इसके पीछे क्या मामलात हैं? क्या वाकई सिंध हुकूमत बिल्कुल फेल हो चुकी है, नाकाम हो चुकी है? तो अगर नाकाम हो चुकी है तो फिर उसके लिए आईनी ऑप्शन भी मौजूद हैं। तो अब क्या होगा इस पे, ये बड़ा अहम है। स्टूडेंट्स और टीचर हमारे साथ मौजूद हैं, हम ज़रा इनसे पूछते हैं कि तालीम, तरबियत और इम्पोर्टेंस कितनी है, और सिंध के दीगर शहरों में मयार तालीम कैसा है, कराची में मयार तालीम कैसा है? शेख साहब, कुछ मामलात ठीक हुए? देखिए सर, मैं तो कुछ चीज़ें ऐड करना चाहूँगा। जी जी। आप अगर आज से 50 साल पहले चले जाएं तो वो फैसिलिटीज़ नहीं थी जो आज हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। कॉमन सेंस तो ये कहता है कि जितनी फैसिलिटीज़ बढ़ती हैं उतनी बेहतरी आती है। अच्छा, एजुकेशन में क्या चेंजेस है, मुझे ये भी बताइएगा, पहले के वक्त में और फिर आज के टाइम पर, क्योंकि जब आप स्टूडेंट थे, अब आप टीचर हैं, तो क्या ये भी मुझे बताएं। मैं अभी वही बात कर रहा था कि 50 साल पहले चले जाएं तो एजुकेशन क्या हर फील्ड के अंदर इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी जो आज हैं। तो अकल तो यही कहती है कि फैसिलिटीज़ बढ़ेंगी तो बेहतरी आनी चाहिए, लेकिन अगर आप ये देखें कि समटाइम्स इसके हम रिवर्स चले जाते हैं। ऐसा ही है। एजुकेशन सिस्टम हमारे वक्त में जो था, आप उसमें और आज अगर देखें बहुत फ़र्क है। हालांकि अच्छा, एजुकेशन के साथ साथ स्टूडेंट्स में भी फ़र्क है, उस टाइम के जो स्टूडेंट्स थे और आज में क्या फ़र्क है? देखिए, मैं पहले तो मैं बात कहूँगा, बल्कि मैं सारे प्राइवेट गवर्नमेंट इदारों को जो है ना ये चीज़ कहूँगा कि तालीम के साथ साथ जो है ना मेरे हिसाब से एथिक्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर आप मुझसे सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस की अगर आप बात कर रहे हैं तो मैंने ये देखी, पहले जो है ना ये जी, पहले जो है ना वो स्टूडेंट टीचर से डरता था
ओके, अब- बिल्कुल सही। अब टीचर I स्टूडेंट agree. से डरता है, ठीक है, ये चीज है, यकीन करें। तो हम तो इसका कसूरवार कौन? इसका नहीं, कसूरवार कसूरवार के कौन? अलावा एक टाइम जब हम स्टूडेंट थे, हम अपनी टीचर से बात करते हुए डरते थे कि हम उनसे ज्यादा कुछ पूछ लें तो कहीं डांट ना सुननी इसमें पड़े। 2-3 फैक्टर ना सर। एक ये कि क्या वो अब टीचर मौजूद हैं, ये सबसे बड़ा मेरा एक पॉइंट है कि जिसकी इज्जत की जाए, क्या वो टीचर मौजूद हैं? शायद कम। दूसरा, हमारे शायद माँ बाप वैसी तरबियत बच्चों की कर रहे नहीं हैं, कर पा रहे। नहीं कर रहे। ये चीज भी, ये भी बहुत बड़ा दूसरा पॉइंट सर, देखिए, बिल्कुल सही। तीसरा ये कि वो आज का स्टूडेंट कंटेंट क्या देख रहा है। और इंडिपेंडेंट है, जी, सब कुछ देखिए, जानता है पहले से। देखिए पहला पॉइंट। देखिए, पहले बात हाँ। पहले तो हमें अपना ना माइंड सेट जरा इस हवाले से थोड़ा ये चेंज करना पड़ेगा कि तालीम, मेरी नजर में तालीम वो नहीं है जो किताबों के अंदर है यस, और हमने वहां पर पढ़ी, हमें एक लेक्चर दिया गया और हमने जाके उसको कॉपी में उतारा गया, टीचर ने चेक किया और उसको मार्क्स दी। तालीम मेरे हिसाब से ये ऑफ कोर्स मैं तो कहता हूं कि- फॉर्मेलिटी तो अब है, यही उसको रुके ना, पूरा तो करना अब पड़ेगा यही ना। रुके ना शेख साहब। अब चूंकि आपने एक ऐसी बात कर दी जिससे मैं बहुत खिलाफ हूँ। यहाँ पे मुतादिद टीचर्स आ चुके हैं और मैं उनको कह देता हूँ और इतना कड़वा कहता हूँ कि फिर वो बेचारे परेशान हो जाते हैं। अब मैं शेख साहब को और इस टॉपिक को नहीं लाना चाह रहा था, लेकिन उन्होंने जब लाया तो मेरा दिल बड़ा खुश हुआ। शेख साहब, आप सर्वे करें, आप जाएं, आपकी तो ये फील्ड है ना, आप इसके एक्सपर्ट हैं। मैंने सर्वे किया, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, हम लोग सर्वे भी करते हैं। हमारा काम शायद उन एजेंसियों की तरह है जो बेस बदल कर जाते हैं। हम आवाम की फीलिंग्स को भी सोसाइटी से लेकर आते हैं। ऐसे ही है। हमारा बहुत डिफ़िकल्ट और एक तर्ज काम हमारा एक बहुत ही डिफरेंट है। 100 स्कूल का आप सर्वे करें या 1000 स्कूल का आप सर्वे करें, मेजॉरिटी स्कूलों में ऐसे असाजा आपको मिलेंगे, मेल फीमेल बोथ, स्कूल कॉलेज बोथ, बिल्कुल सही। ठीक है। यूनिवर्सिटी में शायद रेशो कम है, लेकिन स्कूल और कॉलेज इनका गढ़ है। वो क्या करेंगे, वो खातून आएंगी या वो साहब आएंगे, उनका बॉडी लैंग्वेज होगा, बच्चे खड़े हो गए, ठीक है आप आ जाए, ये रीडिंग करें बेटो, सब बच्चे रीडिंग करेंगे। हो गई रीडिंग, अच्छा हो गई। फिर वो घड़ी को देखेंगे, अच्छा कुछ टाइम रह गया, अच्छा इनको निशान लगा के दे। Yes. एक बच्चा उठेगा, वो बच्चा या दो, वो सबको निशान लगा के देगा। बोला हो गया सर निशान, फिर वो टाइम देखेंगे, यार अभी भी 10 मिनट रह गए, 5 मिनट रह गए, अभी वो पर्टिकुलर पीरियड खत्म होने में। अच्छा फिर वो कहेंगे कि अच्छा अब क्या हो गया, फिर वो या तो अपना मोबाइल यूज़ करेंगे, वो बोले कि बस अब यहाँ से निकल जाऊँ, कहीं जाना है उनको शायद। उस टीचर ने क्या किया, यस, रीडिंग भी बच्चों ने की, निशान भी बच्चों ने लगवाए। अच्छा एक चीज़ रह गई, फिर वो टीचर उनको ये कहेगा, अच्छा वो टीचर है, मैं टीचर ही कहूँगा ना उसको, फिर वो उनको कहेगा बेटा वो जो निशान लगा के थी वो कल लिख के ले आइए। आना, बिल्कुल सही। तो भाई आप कौन हो, बिल्कुल सही। आपने क्या किया, पढ़ा भी उन्होंने, अच्छा पढ़ा गलत पढ़ा उस पर हम निशान नहीं भी खुद लगाया आते, अपने निशान भी खुद लगाए, लिख के भी खुद लाए। आप किस लिए आए थे, बस ये 3 बातें करने के लिए आए थे। हाँ, बिल्कुल सही। अच्छा फिर क्या जो वहाँ के प्रिंसिपल्स हैं, इंतजामिया है, मालकान है, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में भी यही है, बिल्कुल सही। वो क्या कर रहे हैं। हाँ। हम जब तनकीद करते हैं जी गवर्नमेंट ये कर रही है, गवर्नमेंट के स्कूलों में टीचर नहीं है, गवर्नमेंट के स्कूलों में तबाही है, बर्बादी है, तो ये प्राइवेट स्कूलों में तो यही हो रहा है। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में हल कुछ क्या, ज्यादा है। हल क्या। देखें, अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा था कि मेरे हिसाब से स्टूडेंट से ज़्यादा टीचर की एवेल्यूशन जो है ना वो बड़ी ज़रूरी है, ठीक है ना। अब एक अल्फाज इस्तेमाल होता है इंग्लिश के अंदर, रिमूव द काज, हम इसके ऊपर काम नहीं करते, ठीक है। ये तो सर आपने बात क्लासरूम की बात कर दी ना, किस प्रोसेस के तहत वो क्लासरूम में पहुंचा, ओ रिमूव द काज ना। बिल्कुल ऐसे ही। आप भाई पहले रोड पे एक्सीडेंट हुआ है तो सर्जरी तो बाद में होगी ना, पहले उसको ब्लड तो रोको ना। सही। वो तो आपने उसको ब्लड रोकी नहीं। कॉज ऑफ डेथ क्या था, कॉज ऑफ डेथ तो वो एक्सीडेंट से शायद ब्लड का लॉस होना था, तो उसको तो रोको पहले ना। वो किस प्रोसेस से थ्रू पहुंचा ना, वो प्रोसेस में क्या आपकी मैनेजमेंट इन्वॉल्व है। यहाँ पर तो मैंने ये भी देखा है कि अगर आप किसी इदारे में जाएं और आपका अगर हर लेवल से वास्ता है तो फिर बस ठीक है, सलाम दुआ आ गई, ठीक है, बस कल आप ये सब्जेक्ट पढ़ा देना। तो हमने तो ऐसे ऐसे टीचर भी देखे जब गपशप होती है हमारी, तो कहते यार मैं तो कोर्स आउटलाइन नहीं देखता, बस मुझे तो जो आता है बस मैं तो वही पढ़ाता हूँ। भाई कैसे। मैं एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट कहूँगा, ये स्पेशली जब हमारे टीचर्स की बात है, अगर टीचर दोस्त नहीं है तो वो टीचर नहीं है। यस,
बिल्कुल जबरदस्त, ये आप ऐसा होना दोस्त चाहिए। नहीं है, देखिए ये मेरे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, ठीक है ना, आप उनके दोस्त नहीं है तो आप टीचिंग ना करें। आपकी तालीम, अच्छा टीचर वो नहीं होता जिसकी अच्छी नॉलेज हो या अच्छी तालीम हो, यस, जिसकी अच्छी तरबियत हो, जो अच्छा दोस्त बन सके। ओके, ये तो रिस्पेक्ट की जी, बाउंड्री होनी ये बड़ा चाहिए। इम्पोर्टेंट है। और फिर देखिए रेस्पेक्ट के ऊपर तो Compromise बिल्कुल नहीं होना चाहिए। टीचर और स्टूडेंट की बात करते हैं, मैं कहता हूं हर रिश्ते में यस, आप अगर एक पेट पाल रहे हैं ना, उसके साथ भी रेस्पेक्ट इन्वॉल्व है। बाकी आप रेस्पेक्ट की तो कोई बात ही अपने नहीं हो रही। स्टूडेंट्स के साथ फ्रेंडली रह सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे फ्रेंडली दोस्त रह बन सकते हैं आप, सकते हैं। बिल्कुल फ्रेंडली रह सकते हैं। मुझे मेरे वो टीचर याद आ गए, ऐसे मामले में वो याद आ जाते हैं, क्योंकि कुछ अरसा शायद मैंने भी टीचिंग की। जब मैं CSS की तैयारी कर रहा था तो मुझे मेरे टीचर ने कहा कि आप कॉलेज और मैट्रिक के बच्चों को ज़रा पढ़ाएं जाएं ताकि आपका रिवीजन हो। मैंने कहा चलें जी। फिर एक प्राइवेट स्कूल में मैंने कहा ठीक है, मैं भी जाता हूँ, बच्चों को पढ़ाते हैं। सर मैंने कहा मेरी एक्सपर्टीज़ हैं पाकिस्तान अफेयर्स। तो बोला ठीक है, बेहतरीन हो गया। मैंने कहा मैं बच्चों को पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़ाऊँ। ओके ओके। तो ब्रेक में वो टीचर्स थोड़ी देर के लिए बैठ जाते हैं बेचारे, बच्चों की ब्रेक होती है तो वो भी कुछ खा ही लेते हैं 20 मिनट के लिए। हम भी वहाँ बैठते थे। फिजिक्स के टीचर थे हमारे, कुलीग थे। तो चूँकि शहबान का महीना चल रहा है, रजब और शहबान विलादतें हैं, आज भी विलादत है हज़रत अब्बास की, कल थी इमाम हुसैन की। तो फिर वो मुझे उस निस्बत से याद आ गया। हम ऐसे ही बैठे हुए थे तो फिर मैंने उनको कहा, जो फिज़िक्स के हमारे वहाँ टीचर थे और उनकी वालदा इस्लामियात में PhD होल्डर थी, तो ऐसे ही बैठे थे। मैंने उनको कहा कि मोहतशम अहले बैत किसे कहते हैं? शायद ये वो सवाल था कि जिसका जवाब एक स्कूल का बच्चा भी दे सकता है। और मोहतशम साहब को इतनी बड़ी दाढ़ी रखी हुई थी आपने, और वो हमारे उस स्कूल में फिज़िक्स के प्रोफेसर थे और उनकी वालदा इस्लामिक स्टडीज़ में PhD होल्डर। ही सेज कि मुझे क्या पता। ओह माय गॉड। मैंने कहा आपको नहीं पता? कह रहे नहीं। तो मेरे लिए ये बड़ी, मतलब मैं तो शॉकिंग था ना, सत्ता तारी हो गया कि Yes. अहले बैत की बारे में ही इनको नहीं पता। और इतना इस्लामिक घराना जिनकी वालदा इस्लामिक स्टडीज़ में PhD होल्डर, उनका ये हाल है, तो फिर हम सर कहाँ जी रहे हैं? आम लोगों का क्या हाल? हम किस, वो कहते हैं मैं ये कहाँ जाके सर मारूं। बिल्कुल। वो तब ये जब मैंने सुना था तो मैं थोड़ा सा जज्बाती हो गया था। मैं मोहतशम से लड़ने लग गया। मैंने कहा यार तुम लोग कौन लोग हो यार, क्या पढ़ के आए हो तुम लोग, और बच्चों को क्या दोगे यार? ये इस्लामिक मुआशरा, हमें तो अपने दीन का ही नहीं पता हम राइट डायरेक्शन में हैं भी या नहीं है। तो स्टूडेंट में को ज़रा इंगेज करते हैं। जी सर अभी आपने जो बात की, सॉरी मैं आपकी बात करता, आपने अभी जो बात की ना, उनको तो प्रोफेसर की डिग्री तो क्या मैं कहूँगा, उनको स्टूडेंट की डिग्री भी नहीं दी जा सकती। जो भी है, हम देखिए किसी की जातियात के ऊपर हम कोई बात नहीं कर रहे हैं सर, हम एक जनरल बात कर रहे हैं। ये वजह ये है कि वो कहते हैं ना कि किसने दीन इस्लाम मतलब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हैं और कलाम पाक एक है, अल्लाह भी एक है, लेकिन उसको हमने पता नहीं इतना मुश्किल बना दिया है। ये उलमा को, मुफ्तियान इकराम को सोचना होगा स्टूडेंट, आज का स्टूडेंट क्या सोचता है, ये बड़ा अहम है। क्योंकि इन्होंने आगे असेंबलियों में बैठना है, इन्होंने आगे इस मुल्क को चलाना है, ये हमारे मेहमान हैं। आपके पास मैं आता हूँ, आपका कुछ इन दोनों के मुकाबले में कॉन्फिडेंस मुझे बड़ा हाई लग रहा है। और फिर आप जिस जगह पे बैठे हैं, इस जगह पे जो भी बैठता है तो हमारी एंगल, ये एंगल हमारा, ये एंगल हमारे बड़े अच्छे बनते हैं। तो इन सीटों पे जो बैठते हैं उनसे ज़्यादा बात करते हैं। श्योर। आपका फेवरेट टीचर कौन है? मेरा फेवरेट टीचर इस वक्त तक मेरे सामने बैठे हैं। अच्छा, आपके क्या सामने बात है। एक मैं कॉल ले लूँ। अजीज अवान साहब ने ज्वाइन किया है, एक्समैन सर सोसाइटी का चीफ कोऑर्डिनेटर हैं। खूबसूरत अंदाज से आप पाकिस्तान का मुकदमा लड़ते हैं। सर खुश आमदीद कहेंगे अवान साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ऑडियो बहुत कम है, ऑडियो बढ़ेगा। आली अब्बास। अवान साहब, ये जो मौजूदा गर्मा गर्मी है, कराची को वफाक के हवाले कर दिया जाए। सानिया हो गया गोल प्लाजा का, अब उस पर CM सिंध भी बड़े गर्म नजर आते हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ये 18वीं तरमीम ढकोसला बन गई है। क्या कहेंगे अवान साहब? साजिद भाई दोबारा बोलेंगे, मुझे आपकी सही आवाज नहीं आई। ऑडियो बढ़ाइएगा शहजाद। अवान साहब अब आ रही है ऑडियो?
जी बोलें बोलें। अब आ रही है। अच्छा सर, ये जो सानिया गुल प्लाजा होता है कराची शहर में, और उसके बाद लम्हा फिक्रिया और फिर हुकूमतों की सर्विसेज, बहुत सारे मामलात पर उंगली उठाई जाती है। ख्वाजा आसिफ कहते हैं 18वीं तरमीम ढकोसला बन गई है। मुस्तफ़ा कमाल कह रहे हैं इस शहर को वफाक के हवाले कर दिया जाए, क्या कहेंगे? देखिए बात ये है कि ये जो सानिया हुआ है बड़ा अफसोसनाक हुआ है, और मैं समझता हूँ कि ऐसे वाक़यात जो है वो नहीं होने चाहिए, और ये सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। और पहले भी इस तरह के वाक़यात हुए हैं, और कराची में चूँकि मेयर भी उनका है तो लिहाजा उनको ये जिम्मेदारी कबूल भी करनी चाहिए। लेकिन उसके साथ ये भी है कि सिंध गवर्नमेंट इसके ऊपर बड़ा काम भी कर रही है और बड़ी तवज्जो भी दे रही है। अगर उसकी उनकी उस एफर्ट को देखा जाए तो उस पर भी उनकी नीयत पे शक नहीं किया जा सकता। और मैं समझता हूँ कि इस तरह के वाक़या जो है वो रोकना गवर्नमेंटों की जिम्मेदारी है, और वो इस तरह के मामलात करे कि जिससे इस तरह के वाक़यात अगर हो तो कम से कम नुकसान हो, और जल्दी से जल्दी लोगों को वहाँ से निकाला जाए और रिलीज किया जाए। और दूसरा जो आपने कहा कि कराची को क्या आपका क्वेश्चन था? वफाक के हवाले कर दिया जाए, ये कह रहे हैं मुस्तफ़ा कमाल। देखिए मैं इस हक में नहीं हूँ कि कराची को वफाक के हवाले किया जाए। अच्छा। सिंध का एक बड़ा शहर है कराची, और सूबे चलाने के लिए वहाँ पे बड़े रेवेन्यू की जरूरत होती है, और मैं समझता हूँ कि वो जो है वो सिंध के अंदर ही रहना चाहिए। और ये इस तरह के सियासी बयानात होते हैं जो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए या इस मौके पर सियासी बयान देकर अपने आप को बरील जुमा करना, मैं समझता हूँ कि अगर सिंध गवर्नमेंट इसमें जितनी जिम्मेदार है उतनी ही एमक्यूएम भी है। एमक्यूएम ने भी तो एक अरसा वहाँ पे हुक्मरानी की है, और अभी भी उनके एमएनए भी है और वो वहाँ बैठे हुए हैं, तो लिहाजा उनके ऊपर भी उतनी जिम्मेदारी आयद होती है जितनी पीपल्स पार्टी पे होती है। अच्छा सर, ये भी बताइएगा केपी असेंबली में भी बहुत सारे अरकान पार्लियामेंट में बात की, और फिर दहशत गर्दी पर भी बातें हुई कि दहशतगर्द मस्जिदों को निशाना बनाते हैं, इबादत गाहों को निशाना बनाते हैं, लेकिन उनको शायद शराब खाने नज़र नहीं आते, उनको ये दीगर सूबे नज़र नहीं आते, और केपी पे ये बड़ा मामला गर्मा गर्मी है। वहाँ दहशतगर्दी के वाक़यात की रोकथाम के लिए वहाँ की क्या हुकूमत फेल हो चुकी है? देखें अपना साजिद भाई, मैं तो ये कहूँगा कि वहाँ पे जो अपना केपी में दहशतगर्दी हो रही है उसकी बाकी पाक फौज जो है वो एक तवील जंग लड़ रही है, और हमारे जवान जो हैं वो आए दिन अपनी शहादतों का नजराना पेश करके अपने प्यारों को छोड़कर जा रहे हैं सिर्फ दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि वहाँ पर जिस सियासी जमात की हुकूमत है वो तो आए दिन इंतशार चाहती हैं, वो तो लोगों के काम भी नहीं करना चाहते, और उनको पता है कि दहशतगर्दी कहाँ से हो रही है, कौन दहशतगर्दी की मुआवनत कर रहा है, बल्कि वो तो चाह रहे हैं कि दहशतगर्दी हो। वो तो उनके सूबाई वजीर ये कह रहे हैं कि बाकी सूबों में दहशतगर्दी क्यों नहीं हो रही। उनका ख्याल है कि पूरे मुल्क में दहशतगर्दी हो ताकि अफरा तफरी का आलम हो, और इनको तो कुर्सी चाहिए कि किसी भी तरीके से ये कुर्सी पर पहुंचना चाहते हैं। पहले अली अमीन गड्डापुर थे, उन्होंने अपने टाइम या कराची गुजारा या लाहौर गुजारा या डयाला जेल गुजारा, उसके बाद दूसरा उनके सीएम आया, उसका तरीकाकार भी यही है कि वो कभी कराची जाते हैं, कभी लाहौर जाते हैं, और फिर डयाला आते हैं, अपनी आवाम में ना टाइम गुजारते हैं। क्या सूबाई हुकूमत इस दहशतगर्दी की जिम्मेदार नहीं है? क्या सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है कि वो वफाक के साथ इन चीजों को शेयर करके तो दहशतगर्दी को खत्म करे? वफाक के साथ वो बैठना नहीं चाहते। तो मैं समझता हूँ कि पीटीआई इस वक्त जो है वो दहशतगर्दों की एक आलाकार बनी हुई है और दुश्मन के हाथों में खेल रही है। हमने तो बारहा दफा मुतालबा किया कि पीटीआई का सियासी तौर पर पाबंदी की जाए। अवान साहब, आप पाबंदी की बात अक्सर करते हैं, मैं दो अभी इंपॉर्टेंट सवाल आपसे कर रहा हूं और आपके कंधों पर बड़ा मैं वजन रखने जा रहा हूं। एक ये मेरा सवाल है कि 8 फरवरी को पूरा पाकिस्तान बंद करने की कॉल दी गई है, एक आपकी इल्म में होगा। दूसरा मेरा सवाल भी आप सुन लें, जो केपीके और जो पीटीआई की जो हुकूमत की आपने बात की, अभी तक की ये इतलात हैं कि वहाँ पे दहशतगर्द ये जो सो कॉल्ड फितनल ख्वारिज और तालिबान हैं, वहाँ की हुकूमत भत्ते दे रही है, कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है, इतनी कमज़ोर है, तो फिर कोई वफाक की तरफ से एक्शन क्यों नहीं नज़र आ रहा?
دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو 8 فروری کی بات ہے یہ اسی طرح ہی ہے. پہلے بھی انہوں نے دھرنے بھی دیکھ لیے, مارچ بھی کر کے دیکھ لیے, کوئی ملک بند نہیں ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں اب ان کو سختی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آنا چاہیے, ان کو مروت کی چیزیں چھوڑ دینی چاہیے, کیونکہ یہ اس کا نہیں ہے کہ ان کے ساتھ نرمی اختیار کی جائے. دیکھیں پاکستان اس وقت معاشی طور پر جس طرح اوپر جا رہا ہے اور پوری دنیا میں پاکستان کا ایک مقام بن گیا ہے. پاکستان کے فیلڈ مارشل سید آصف منیر اور پرائم منسٹر آف پاکستان نے مل کر پوری دنیا میں جدوجہد کر کے پاکستان کو ایک اعلیٰ مقام پر لے گئے ہیں, جہاں پر ہمارے جو لوگ ہیں وہ باہر بزنس کے لیے جا رہے ہیں. پوری دنیا کے انویسٹر دوبارہ پاکستان میں آنا شروع ہو گئے ہیں, بڑے بڑے ملکوں کے سربراہ پاکستان میں آئے ہیں. تو جب ملک ترقی کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت ہی ایسے لوگوں کو چیزیں یاد آتی ہیں جو ملک کو کمزور کرنا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اس میں دہشت گردی ہو اور لوگ جو ہے یہاں سے بزدل ہو کر چلے جائیں یا نہ آئیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس وقت ایک دہشت گردوں کی اور ایک ہمارے بڑے دشمن ملک کی اعلی کار بنی ہوئی ہے, اور ان سب کا ایک ایجنڈا ہے. اور آپ دیکھیں کہ ابھی بھی ہمارے پرائم منسٹر اور ہمارے فیلڈ مارشل صاحب ملک سے باہر ہے اور وہ ایک بزنس فورم میں شرکت کرنے کے لیے گئے ہیں, جہاں پر وہ کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کے امیج کو بہتر بنا کر لوگوں کو دعوت دی جائے کہ پاکستان میں آ کے انویسٹمنٹ کریں. اس سے ایک عام پاکستانی کی زندگی بدلے گی, اس سے ایک معاشی طور پہ جب ہمارے حالات بہتر ہوں گے تو ایک عام پاکستانی جو ہے وہ عزت و احترام سے اپنی زندگی گزار سکے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے نا یہ انتشار پھیلا کر اور اس طرح کے معاملات کر کے کہ ہم 8 فروری کو آئیں گے, ملک میں افراتفری کا عالم بنانا چاہتے ہیں, لیکن ایسا ہوگا نہیں. اور اب میری یہی گزارش ہے وفاق سے بھی اور اپنے سکیورٹی اداروں سے بھی کہ وہ اب بھی اس چیز کی توجہ دیں کہ ایسی پولیٹیکل جماعت جو ملک کے لیے نقصان دہ ہو, جو دشمن کی اعلی کار بن جائی ہو, جو دہشت گردوں کو اوپن اجازت دے کہ وہ دہشت گردی کرے اور وہ اس طرح کے معاملات کرے, تو ان کے اوپر سیاسی پابندی ہونی چاہیے. شاید یہ جو میں اب آپ سے سوال کر رہا ہوں, شاید میں پاکستان کی سیٹلائٹ جتنی بھی میڈیا ہے وہ پہلا آدمی ہوں گا جو یہ سوال آپ سے کرنے جا رہا ہے, اور آپ پہلے وہ صاحب ہوں گے جو یہ جواب دیں گے. یہ جو فیلڈ مارشل صاحب اور وزیر اعظم صاحب باہر دورے کر رہے ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ وزیر اعظم صاحب سرگوشیاں کرتے نظر آئے, بڑا ان کو اپریشیٹ کیا گیا, لیکن پاکستان میں اس پیس معاہدے کو مطلب یہ کہیں کہ غلط انداز سے پیش کیا جا رہا ہے. ہماری گلی محلوں میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کمپرومائز ہو گیا ہے, فلسطین کے معاملے پہ امریکہ کے ساتھ بیٹھ گیا ہے. تو اب یہ ایک ذہن سازی کی جا رہی ہے جو کہ بڑی خطرناک ہے ریاست کے لیے, ملک کے لیے. یہ اس کی روک تھام کے لیے حکومت وقت کیا کر رہی ہے, اور یہ جو فیک نیوز کا سہارا لے رہے ہیں ان کا کیا حل اور علاج نکالا جا رہا ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ان کا کام ہی یہ ہے فیک نیوز پھیلانا اور انتشار پھیلانا. آپ دیکھیں کہ ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں اور پرائم منسٹر ہیں وہ وہاں پر مختلف ملکوں کے سربراہ سے ملاقات کر رہے ہیں اور ان کو قائل کر رہے ہیں پاکستان آنے پہ اور یہاں پہ آ کے بزنس کرنے پر. اور جب وہاں کے لوگ یہاں پہ آئیں گے تو اللہ کا فضل ہے کہ پاکستان معاشی طور پر ایک مضبوط ملک بنے گا. اور جہاں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کمپرومائز ہو گئے ہیں, دیکھیں بات یہ ہے کہ فلسطین پر ہمارا کھلا موقف ہے اور پوری دنیا ہمارا موقف کو جانتی ہے. اور جو چیزیں ہیں نا کہ کہیں بیٹھنا, دیکھیں اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. ہم کہیں بیٹھیں گے تو اپنا موقف پیش کریں گے نا. جب ہم کسی فورم پہ ہوں گے ہی نہیں تو ہم وہاں پہ اپنا موقف کیسے پیش کریں گے؟ بہت سارے ایسے دنیا میں فورم ہے جہاں پر اسرائیل کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ہم اپنا موقف پیش کرتے ہیں, وہ اپنا موقف پیش کرتے ہیں. تو بیٹھنے میں تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے. اس چیز کو غلط رنگ دے کے پروپیگنڈا کر کے اور اس کو ملک کو بدنام کرنے کے لیے اور اپنے لوگوں کو اصل ٹریک سے اتارنے کے لیے یہ پی ٹی آئی کا ایک بڑا وتیرہ ہے. اور وہ یہ چاہتی ہے کہ وہ اس طرح لوگوں کو بازن کرے کہ حکومت جو ہے وہ فلسطین کے معاملے میں کمپرومائز ہوگی. ایسا بالکل نہیں ہے. فلسطین کے معاملے میں پاکستان کا موقف پوری دنیا جانتی ہے, اور ہم جہاں بھی بیٹھے ہوں گے, جس فورم پہ بھی بیٹھے ہوں گے, ہم اپنے اسی موقف کی جو ہے نا وہ تائید کریں گے اور اسی موقف کو لے کے آگے چلیں گے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا عزیز عوار صاحب نے موقف دیا. اور ایک وقفہ لیتے ہیں جی, وقفے کے بعد آتے ہیں.
सुबह सवेरे वीनस के साथ सुनहरी रोशनी के साथ साए का पीछा करते हुए सजे दिल से खुशी के साथ ऑन एयर आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी सुबह सवेरे वीनस के साथ सुनहरी रोशनी के साथ साए का पीछा करते हुए सजे दिल से खुशी के साथ ऑन एयर आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। वक्फे के बाद खुशामदीद। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। अब हम ज़रा तरक्की खुशहाली पर भी बात कर लेते हैं। कोशिश हम करते हैं सानियात पर कम ही बात करें। सानियात पर हमारे न्यूज़ कास्टर्स और हमारे रिपोर्टर्स बेचारे दिन रात रिपोर्टिंग भी दे रहे हैं और आपको गर्मा गर्म खबरें ऑन टाइम सुनाने में मसरूफ़ हैं। हर कोई अपने शोबे और अपने चीज़ों को देखकर चल रहा है। आज का जो स्टूडेंट है, हम 2000 और 90s वाले स्टूडेंट अब ये हैं आज के स्टूडेंट जो है वो जेनजीज है ना। हाँ, आज के स्टूडेंट जो हमारी जेनजी जनरेशन है, जनरेशन जी, वो क्या ख्यालात रखती है, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। आज का बच्चा क्या सोचता है, हम उस वक्त क्या सोचते थे। मैं इनके पास आता हूँ ना, इनका बड़ा कॉन्फिडेंट। हाँ, अच्छा ये बताइएगा कि ना आपसे मैंने ब्रेक से पहले पूछा था कि आपके फेवरेट टीचर कौन है। जी यस, तो आपने कहा था कि शेख जो साहब। सामने बैठे मेरे। शायद इसलिए कि ये सामने बैठे। यस, यही नहीं। जानना है मुझे। नहीं, इसके पीछे काफ़ी सारी रीजंस हैं। हाँ। सबसे पहले मैंने आपसे बात की, शेख साहब से तकरीबन हमें अटैच हुए हुए तकरीबन कोई 4 महीने हुए, कोई ज़्यादा अर्सा नहीं गुजरा। सही। लेकिन इन 4 महीनों में जो हमारा जो उठना बैठना, हमारी जो गपशप होती है, उसने हमें बहुत कुछ सिखाया है। हमें हमेशा मेरे सामने में उस्ताद बैठे हुए हैं, ये कभी भी ग्रेड्स पर तो कभी बात ही नहीं करते। सिर्फ मैं, ये मेरा मौक़िफ़ नहीं है। इस वक्त हमारी क्लास में कोई शेख साहब क्लास में 50 का बच्चा होगा। हर एक बच्चा वो सर से यही बात करते हैं कि सर 24/7 हर बच्चे के लिए अवेलेबल होते हैं। किसी का कोई इशू, कोई मसला, किसी को कोई गाइडेंस चाहिए हो, कोई मतलब उनको अपॉर्चुनिटी चाहिए हो, कुछ किसी हवाले से भी। सर को गुस्सा आता है? नहीं सर, गुस्सा तो एक नेचुरल है ना सर। टेम्परामेंट को मतलब करने में कंट्रोल कर लेते हैं। बहुत मतलब बच्चों के ऊपर या स्टूडेंट्स पे कभी गुस्सा नहीं कभी भी निकलता नहीं। इनका। अगर जबरदस्त। कोई बच्चा हो जाता है इमोशन, तो बल्कि कोई Sort out कर कोई लेते हैं अगर वो फॉर्म से, आपको कोई बेहतरीन। अगर आपको या आपके किसी क्लास फेलो को जी कोई लड़की पसंद आ जाए, सर को बताते हैं? सर से शेयर कर सकते हैं हम लोग। कर सकते हैं। यानी बस वही- इतना है वो तो क्योंकि क्या सर बात ने है। मुझसे वही पहले सर कहा था। फ्रेंडली, सर ने हमें इतना फ्रैंक, इतना मतलब वो दिया, स्पेस दिया हुआ Comfort है। zone दिया है आपको ना। बिल्कुल। हाँ। तो क्या हम सर से कोई भी इशू कर लेते हैं। लाइक हमारे रूहानी बाप जैसा आपने कहा। अच्छा, ये देखिए ये बहुत अहम है और मुझे इस चीज़ का शिकवा था, वो शिकवा कम होने लगा है कि आज भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो टीचरों की तरह इज्जत करते हैं। क्योंकि टीचर्स की इज्जत अब वो नहीं करते। हम उस टाइम पे जब हम पढ़ते थे तो तब वो कराची में बोरी बंदलाशियों का सिलसिला होता था और मुझे याद है हमारे बैठे हुए, हमारी साथ के बैठे हुए स्टूडेंट टीचर्स को ऐसे ऐसे चुटकियाँ बजा के कहते थे, चल भाई आगे पीछे हो तू, बिल्कुल ठीक है। अबे तबे की लैंग्वेज यूज़ की जाती थी उस वक्त। कॉलेजों का ये हाल था और स्कूलों का। वो भी मामलात हमने देखे कि बेचारे टीचर्स को मारने के लिए लोग आ जाते थे। ग्रुप बनते थे, पूरे वो ग्रुप तैयार होते थे, student- बाहर निकलेंगे टीचर तो हमको मारेंगे। वो स्टूडेंट ये कहता था कि तूने मुझे हाथ कैसे लगाया, अभी तू देख तेरा क्या करता हूँ। बिल्कुल सही। बिल्कुल ये अच्छा, आपसे मेरा ये सवाल है कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? जी, जो आज का फेवरेट सब्जेक्ट है मेरा वो AI है। अच्छा, तो जबरदस्त। उसमें क्या सीखा, क्या सीखना है? जी, अभी तो स्टार्टिंग की है हमने, जैसे कि AI और मशीन लर्निंग, ये Yes. चीज़ें बहुत ग्रो कर रही हैं। हम जैसे इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, कोई चीज़ हमारे थॉट में आती है, वो सामने आ जाती है रील, उसके पीछे क्या चीज़ें चल रही हैं वो सारी मैथमेटिकल है। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, कोई टॉपिक है सियासी, तो हम इंस्टाग्राम फौरन खोलते हैं, ओपन करते हैं
ओपन करने के बाद वही चीजें हमारे सामने आ जाती हैं। सिर्फ इंस्टा की बात नहीं है, ये हर यूट्यूब जगह- पे भी ऐसा ही होता है। Facebook पर भी है। मैं- मुझे लगता है ये कैसे हो गया, मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम चल रही है, ये कैसे हो गया, ये मुझे पहले लगता था, लेकिन मैं अब समझ रही हूँ इन चीज़ों को। जैसे ऐसे ही है, जैसे घर में जो जिसके पास तरबियत नहीं है या तालीम नहीं है वो बोलते हैं जादू है। हाँ, जादू, ये जादू क्या हो है गया। इसके पीछे मैं- आप इसके बताएं। पीछे जो है ना, अभी तो न्यूरॉन्स पे काम कर रहे हैं, साइंटिस्ट न्यूरॉन पे काम कर रहे हैं। अभी जो हमारे थॉट में है, अभी आवाज निकला नहीं है, वो चीजें सामने आ जाएंगी अभी इन फ्यूचर। अभी जो काम चल गया है मशीन लर्निंग पे, अभी हम कोई भी गुफ्तगू कर रहे हैं वो चीजें हमारे सामने आ जाएंगी फौरन। इसका बेनिफिट भी है और बड़ा नुकसान भी है। नुकसान ये है कि हम इमोशनल हो जाते हैं, जैसे रिलेशनशिप में अब बहुत ज्यादा रिलेशनशिप में डैमेज हुआ है इस चीज का। जैसे कोई हस्बैंड और वाइफ की लड़ाई हो गई है, हस्बैंड के पास वो रील्स आती हैं कि सारी गलती वाइफ की है, वाइफ की है, बिल्कुल सही। और वाइफ के पास वही सारी रील्स आती हैं, वही कंटेंट आता है कि सारी गलती जो है ना, बिल्कुल सही, आई एग्री, Excellent, बिल्कुल सही। excellent. वो इतना ज्यादा ये चीज जो है ना डैमेज कर रही है इसका हमारी आसान society को। मतलब, क्योंकि हम आसान ये हमें लोग देख रहे हैं, इसका मतलब ये जो सेल फोन है जी ये सुनता है। बिल्कुल सुनता है, 100% सुनता है। सर मैं यहाँ पर एक बात करना चाहूंगा, सॉरी वो ये बंद है लेकिन सुनता है। सर वो मैं एक भी तो शायद वो तारुफ है चीज मिस हो गई, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर भी हूँ। जी 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 जी। मैं एनडी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी कराची से। क्या बात है। तो सर ये सुनता है? सर बिल्कुल सुनता है। हम तो अभी तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात कही कि वो रील आ जाए तो रिलेशनशिप और बिल्कुल ऐसा ही है, मतलब कभी कभार यही लगता है वो कसूर, वो चीजें उसी से रिलेटेड चीजें होती है। बिल्कुल मैं बिल्कुल आज ऐसा ही के है। सोशल मीडिया के हवाले से और कुछ नहीं, एक मैं इस्लामिक स्कॉलर नहीं हूँ, मैं कमी पेशी अल्लाह पाक माफ करे, मैं एक हदीस कोट करना चाहूंगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सेइंग है कि एक शख्स के झूठे होने के लिए ये बात काफी है कि वो सुनी सुनाई बात को बगैर तस्दीक के आगे फैला दे। बस। और फिर वो झूठे के लिए वाले क्या रहता है, सिंपल आता है कि झूठे के ऊपर अल्लाह की लानत है। तो हमें इस अगर और कुछ नहीं, बस सिर्फ इस बात को अगर हम इम्प्लीमेंट करें ना, तो सोशल मीडिया के यूजेज में काफी पॉजिटिवनेस आ ये जाएगी। ऐसा भी तो हो सकता है, ये जो मोबाइल है, ये जो मतलब उनके अगेंस्ट चीजें हमें दिखा रहा है, उसके फेवर में भी तो चीजें आ सकती है, लेकिन नहीं आती। बिल्कुल ये सही है, बिल्कुल अपोजिट बिल्कुल मैंने वही कहा ना कि इन्होंने बड़ी खूबसूरत बात कही। यानी कि अच्छा अब बहुत ये देखें, नुकसान है अब आप ये देखें, उन्होंने बात की, उसको कबूल किसने किया? हमने ना। अब दुनिया में कोई भी चीज हो, जानदार हो बेजानदार हो, वो बेकार है अगर उसको इस्तेमाल ना करें आप, ठीक है? सही। तो अकल दिए ना अल्लाह ने, किसने नहीं दिए? इनसे पूछते हैं इनका इसलिए दिए। अकल इस्तेमाल करो ना, बिल्कुल सही है। ठीक है। तो अच्छा चलो ये बात हो रही है, चलो एआई ने जो रील दे दिया, सही। और जो कुरान ने दिया वो माफी की बात नहीं करता। अब आप आ जाए, एक तरफ आपके पास कुरान कायनात की सब है, सबसे बड़ी लेकिन ऑथेंटिक थ्योरी, आजकल हम जान आपने रहे रील को इंपॉर्टेंस दे दी। दे दी, बिल्कुल सही है। आप वो कहें चले, आपका सर फेवरेट सब्जेक्ट सब्जेक्ट? कौन सा है? अच्छा, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट सिविक्स एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट है, जो कि हमने सर मोहम्मद वो अली सर को शेख मैंने से ही पढ़ा। क्या बात है, जबरदस्त। ये फेवरेट क्यों हो गया मेरा? हाँ, क्यों इस हो वजह से क्योंकि पढ़ते तो हम हर सब्जेक्ट से, मगर इस सब्जेक्ट का जो मेन एम था हमें कम्युनिटी के साथ एंगेज करना, सही। कि सोसाइटी चलती कैसे है, रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं हमारी, क्या ड्यूटीज हैं, ये सारी हमने सीखी इस कोर्स में। मगर सिर्फ ये नहीं कि हमारा कोर्स ये फेवरेट है, ये भी है कि टीचर हमें अच्छा मिल गया जिसने हमें कम्युनिटी के साथ अब एंगेज किया। एक आपने सेंटेंस बोला कि ये टीचर हमें अच्छा मिल गया। Yes. शायद अगर इनकी जगह कोई और टीचर होते तो मेरी इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में दिलचस्पी भी ना होती, मैं इतना अच्छा सीख भी ना पाता, मैं इतना न ग्रो करता, मैं पनप नहीं पाता, है ना। मुझे किसी ने कहा साजिद भाई आपको मैथ्स आती है? मैंने कहा नहीं यार, मुझे मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट ही नहीं रहा और मुझे इतनी अच्छी नहीं आती। तो मुझे किसी ने कहा वजह? मैंने कहा वजह ये कि मुझे उस टेन्योर में अच्छा मैथमेटिक्स का टीचर नहीं मिला, बिल्कुल सही, आई बिल्कुल अग्री। इसीलिए मुझे मैथमेटिक्स नहीं आती। तो बोला क्यों? मैंने कहा मैं जिस टाइप का बच्चा था, मुझसे किसी मैथ्स के टीचर ने दोस्ती ही नहीं की। मैं प्यार से पढ़ने वाला था, मुझे मैथ्स किसी ने प्यार से पढ़ा ही नहीं, तो फिर मैंने भी इंटरेस्ट लिया ही नहीं। बिल्कुल सही। मुझे इंग्लिश और पाकिस्तान अफेयर्स में ज़्यादा अबूर है क्योंकि इसके टीचर मुझे बहुत अच्छे मिले। अच्छा, इसके अलावा ये जो आपने टीचर वाली बात की, सब्जेक्ट्स के जो टीचर होते हैं उनकी पर्सनैलिटी भी उसी तरीके से होती है। बिल्कुल। या जैसा टीचर, मतलब अगर इस्लामियत का टीचर है तो वो उसी उसमें है,
اگر کیمسٹری کا ٹیچر ہے تو وہ چیز بہل جاتے ہیں نا اس میں. ہاں یہ بات اگر آپ نوٹس کریں تو تھوڑی دیر پہلے میں نے یہ کہی تھی, صحیح. ٹیچر اگر فرینڈلی نہیں ہے, ہاں. دیکھیں اب آپ دیکھیں کچھ ڈاکٹرز ایسے ہوتے ہیں اور پتہ چل جاتا ہے ڈاکٹر کو کہ یہ اس کو بیماری ہے, اور اس کی وہ ابھی وہ باڈی لینگویج کیا ہوتی ہے, تمہیں تو کچھ بھی نہیں ہے, تمہارا دماغ خراب ہے, چل جاؤ تم تو ٹھیک ہو, اور تو وہ میڈیسن بھی دیتا ہے, لیکن وہ بیسیکلی انڈائریکٹلی اس کو ٹارگیٹ کرتا ہے. اچھا چلو ٹھیک ہے, آپ آئے ہو چلو یہ کھا لینا. شیخ صاحب ایسے اب ڈاکٹرز بھی کم ہو گئے, ہے نا سر چیزیں جو ہے لیکن نا, میں ایک ایسے ڈاکٹر کو جانتا تھا سر, یہ آپ جو کہہ رہے ہیں یہی سیم جو آپ بتا رہے ہیں کہ یہ کچھ ڈاکٹر آپ کی اس تھاٹ سے کھیلتے ہیں. پیشنٹ آیا تو پیشنٹ ایسے مرا ہوا ہے تو وہ اس کو فیل نہیں کرواتے, وہ اس کو کہتے ہیں جوان کیا ہو گیا, تم تو بالکل فٹ ہو, میں نے بھی چیک کیا تمہیں تو بخار بھی اتنا نہیں ہے, اور وہ آدھا ٹھیک ہو جاتا ہے اسی ٹائم پر. اچھا چلو میں تمہیں بس ایک چھوٹی سی ایک گولی دے دیتا ہوں, بس یہ آرام آ تم جائے کھا گا لینا اس میں. 2 گولیاں اور تم ٹھیک ہو جاؤ گے. اچھا یہ سیم سینیریو مطلب میں فیل کر چکا ہوں, مطلب یہ وہ عالم تھا کہ جب میں نے کہا یار ڈاکٹروں کی ایسی کی تیسی, یہ سارے جو بیٹھے ہوئے ہماری گلی محلوں میں کلینک کھول کے یہ سب فارغ ہے. مجھے کسی بہت بڑے آغا خان یا ہاسپٹل جا کے کسی سے اپوائنٹمنٹ لے کے اسکن کے ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے, مجھے اسکن پہ اسکیبس تھی. تو میں نے بولا یار یہ ختم ہی نہیں ہوتی, مجھے رات کو سردیوں میں کیا مطلب 8 کلاس کا بچہ, تو مجھے اسکول کے لیے بڑی صبح اٹھ نہیں پاتا میں, گھر والے انہوں نے میرا بیڈ چینج کر دیا. اب کیا تھا وہ 1-2 ٹیبلٹیں تھی سر, وہ میں گیا, وہ مجھے لے گئے ایک صاحب میرے ہی اسٹوڈنٹ, مطلب ساتھ کے میرے پڑوسی دوست تھے میرے, تو میں جا نہیں رہا تھا. اس نے مجھے کہا ساجد اتنا اچھا ڈاکٹر ہے, اتنا بہترین, وہ شاید اب باہر چلے گئے, یہ ان حالات میں باہر گئے کہ جب بھتے لیے جاتے تھے, اس زیدی صاحب سے بھی تو وہ چلے گئے. اور پھر وہ آپ کے اس کراچی میں اس وقت یہ 2005 کی بات ہے 20 روپے کی پرچی پر علاج کرتے تھے, اور ان کے پاس اتنا رش ہوتا تھا. تو تب میں اس اپنے دوست کو کہہ رہا تھا بھئی یہ 20 روپے والا کیا کرے گا, میں تو بڑے بڑے کو دکھا سکتا ہوں, یہ دیکھو یہ لوشن یہ صابن یہ سب نے مجھے دیے, کچھ نہیں. اس نے کہا بھائی تو میرے ساتھ ایک بار چل یار. بالکل صحیح. اچھا بھائی, میں نے کہا میں تیری ضد پہ چلتا ہوں. تو یہی انہوں نے مجھ سے پہلا رویہ ان کا یہ تھا, مجھے ایسا لگا یار یہ مجھے جیسے جانتا ہے. مجھے اس نے پہلے ہی کہا مایوس کیوں ہو بھائی, کچھ بھی نہیں ہے, یہ 2 ٹیبلٹ تو اچھا انہوں نے مجھے 6 ٹیبلٹ دی, اور باقی میں نے 2 صرف چھوٹی سی ٹیبلٹ لی, میں صحیح. تو اب کیا وہ شاید اس کا مسئلہ تھا. سر اس سے میں ایک چیز لنک کرنا چاہوں گا, میں میری معلومات کے حساب سے میں بھی رائٹ کہ اگر ایک کوئی شخص 3 دن پانی نہ پیے تو اس کی ڈیتھ ہو جائے گی. میں بھی تھوڑا بہت لیفٹ رائٹ ڈیٹا, اور 7 دن تک کھانا نہ کھائے تو یہ تھا. لیکن اب موٹیویشن کی بات آ جائے, اگر موٹیویشن آپ اس کی ختم کر دیں تو دین پھر وہ تو میں بھی یہ چیز ہو جائے. دوسری, اللہ کی ذات نے انسان کے اندر جو ہے نا وہ نفسیات کو انٹیکٹ کیا ہے. انسان کوئی کتنا بھی فیبریکیٹ کر لے, کیا بھی کر لے, ایک ٹائم تک فیبریکیٹ کر سکتا ہے چیزوں کو. فطرت کے تابع ہے انسان. کیا بات ہے, فطرت کے تابع ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ ابھی آپ نے محمد فائق صاحب سے بڑی اچھی وہ کہی کہ اگر تمہیں کوئی لڑکی پسند آ جائے, پتہ ان کو شاید معلومات ہو یا نہ ہو, میں نے آج تک جتنی ٹیچر کی میں واحد ٹیچر تھا جس کے پاس یہ کیس سب سے زیادہ آتے تھے. زبردست. اور جس پرائیویٹ ادارے سے یہ میرے اسٹوڈنٹ ہیں وہاں پر تو میرے پہلی دفعہ میں نے پڑھایا تو 3.5 مہینے میں 4 مہینے کے اندر کوئی مور دین 15 کیسز پہلی دفعہ کبھی مجھے کیسز میرے سامنے آئے, اور میں نے ان کو سالو بھی کیا جو بھی میں کر سکتا تھا وہ بتائیں. تو یہ ہونا چاہیے ایک ٹیچر میں کہ اکثر ہمارے ہاں ماں باپ بھی وہ اسپیس اپنے اولاد کو نہیں دیتے, پھر وہ ایسا کندھا ڈھونڈتے ہیں کہ جس پہ وہ سر رکھے, جس کو وہ بات بتا سکیں, کیونکہ جیسے بچہ گرو کرتا ہے تو بہت ساری چیزیں فرسٹ ٹائم وہ فیس کر رہا ہوتا ہے. اور میں کہتی ہوں پیرنٹس کو بھی فرینڈلی ہونا چاہیے, اسپیشلی جب بچہ ٹین ایج میں ہے یا پھر وہ ایک ایسی ایج میں ہے, ان کے ساتھ فرینڈلی. میں تو کہوں گا کہ صرف پیرنٹس کو نہیں, سب کو فرینڈلی رکھنا چاہیے. میں یقین کریں یہ ہمارا ابھی شو بڑا میں انجوائے کر رہا ہوں ٹو بی ویری آنیسٹ, اور یہ اسی لیے کہ آپ دونوں کا جو فرینڈلی جو بیہیویئر ہے نا, اس نے آپ نے سمجھ لیں کہ وہ ایک اور ایڈیشنل کرنٹ پیدا کر دیا. وہ کرنٹ ابھی اس کے بعد ابھی ڈبل ہوگا اس بریک کے بعد. اب وہ پوچھے کیونکہ نہ دیکھیں ہوتا کیا ہے, ہم لوگ ایٹیٹیوڈ سے بھرے ہوئے لوگ ہیں, ہر چیز میں ہمارا منہ بن جاتا ہے. ہم ایک اچھا ڈریس پہنتے ہیں تو پھر ہمارا تو سینہ ایسا چوڑا ہو جاتا ہے, ہم پھر لوگوں کو سمجھ کچرا ہے یہاں پہ. نہیں یار, خدا کی مخلوق ہے یہ. ہم ان چیزوں سے کب نکلیں گے,
हम तो इन्हीं चीज़ों में ही हैं अभी। हाँ फिर सोसाइटी का एक सबसे बड़ा अलमिया ये जिसकी मैं मजम्मत करता हूँ, आज मैंने करी दी, पहले मैं अल्फाज चेंज करता था। बड़ी गाड़ी आई तो उसका गेट खोलने के लिए 4 लोग पहुंच गए, सही रिक्शे से कोई आया तो सबने मुंह इधर कर। सही, बिल्कुल सही। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? आपने देखा उस बड़ी गाड़ी में बैठे हुए शख्सियत नहीं है, वो फारिग आदमी है, और जो उस रिक्शे से उतरा है वो एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, लेकिन आपने सिर्फ उसके रिक्शे को ही देखा, आपने उसको देखा ही नहीं। तो इतना ये हमारे माइंड सेट बन चुके हैं। एक वक्फा लेते हैं जी, वक्फे के बाद आते हैं। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। और स्टूडेंट हमारे साथ बैठे हैं, हम तालीम पर बात कर रहे हैं, तरबियत पर बात कर रहे हैं, सोसाइटी पर बात कर रहे हैं। और फिर बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, उनका इतना अच्छा कॉन्फिडेंट होता है कि वो जब बोलते हैं तो उनके लिए वो मुहावरा याद आता है कि तू बोलता है, तो बहुत अच्छा बोलता है। और इतना बोलते हैं कि शायद खड़े होकर क्लैपिंग करने का दिल चाहता है। तो और ऐसे बच्चों को बोलने का प्लेटफॉर्म दिया जाए चाहिए, और फिर उस बच्चे से पूछा जाए आपने क्या बनना है। अब जिसको वो जो बनना है उसको वो बनने दिया जाए। पूछें तो सही, हमारे यहाँ फ्यूचर गाइडेंस ही नहीं है। बच्चा पढ़े जा रहा है, किताबें पढ़े जा रहा है, रट्टे लगाए जा प्रेशर है रहा कि आपने डॉक्टरी बनना लिखे है, जा रहा आपने है, हाँ, इंजीनियरी बनना है, प्रेशर ना डाले बच्चों पर। थीसिस लिखे जा रहा है। फिर वालिदैन का बड़ा प्रेशर है कि यार वो हमारे यहाँ इंजीनियर बनते हैं, मेरा ख्वाब है कि तुम डॉक्टर बनो, तुम्हारे अब्बू भी इंजीनियर थे तो आपने भी इंजीनियर ही बनना है। तो वो बच्चे पे अलग प्रेशर, अब उसको वो इंजीनियरिंग वाला माइंड ही नहीं है बच्चे का। आपने उस पर बोल दिया कि नहीं आपने बनना है, तो वो नहीं बने। वो एक हद तक आपने उसके वो साल ज़ाया करवा दिए, और वो बनेगा फिर भी नहीं। और अगर वो बन भी गया तो वो एक बड़े पाए का इंजीनियर नहीं बनेगा, वो जस्ट एक नाम का इंजीनियर होगा। डिग्री होगी बट वो बात नहीं होगी जो शौक, क्रेज। हम यहाँ बैठे भाई, क्रेज था, शौक था हमें। यस, हम यहाँ पे पैसों की वजह से नहीं आए थे इस मीडिया फील्ड में, हमें शौक था। हमसे पूछें आप इससे पहले क्या करते थे? मैं तो भाई एक प्राइवेट ज़िंदगी की पहली मैंने एक प्राइवेट नौकरी की 2015 में, और वो कंपनी थी दराज.pk। तो 1 साल बाद मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं इसके लिए नहीं बना, मुझे महसूस हुआ। फिर मुझे कुछ दोस्तों ने कहा यार तुम इसके लिए नहीं बने। मैंने कहा फिर? बोले तू मीडिया में क्यों नहीं जाता, तू बहुत अच्छा बोलता है। मैंने कहा यार मुझे अच्छा बोलता हूँ मैं। फिर मैं जब गया तो मुझसे किसी ने इंटरव्यू किया, साजिद साहब आपकी में कुछ अच्छा है? मैंने कहा यार मुझे में अच्छी एक चीज़ है, मैं अच्छा बोलता हूँ। तो फिर मैं जब मेमोरी में गया, अपने आप को स्टडी किया, तो फिर मैंने कहा यार मुझ में एक ही चीज़ अच्छी है, मैं अच्छा बोल लेता हूँ, तो फिर क्यों ना मैं स्क्रीन पे आके बोलूँ। सर मैं एक चीज़ ऐड करूँगा आपके इसके बारे में, और आप अच्छा नहीं बोलते, मेरे हिसाब से आप खूबसूरत बोलते हैं। चले, जबरदस्त, ये आपकी सर हुस्न नजर है। होने पे सुहागा। हाँ, अब देखें, अब जब खूबसूरती की बात की, सर शादियाँ कितनी की आपने? सर शादी नहीं वो शरई शादियाँ अभी तक तो हमने एक ही खुशी देखी है आखिरी। अच्छा, बस शादी एक ही होनी चाहिए। अच्छा चले। अच्छा ये बताएं, लव मैरिज है आपकी आप या लव को अरेंज किया? नहीं, हम साथ पढ़ते थे एनएल यूनिवर्सिटी में, और आप इसको लव भी कह लें और अरेंज भी कह लें, इस तरह से। हाँ, अक्लमंद लेकिन यही है। आजकल जो लव का हमने, मैं सच्ची बात बताऊं, जो मैंने देखा है हमें लव का पता ही नहीं है। क्या बात है, जबरदस्त। हमें लव का मीनिंग नहीं टू पता बी कि वेरी है ऑनेस्ट, क्या। जो मैंने देखा है, मैं बड़ा इंटरेक्शन है मेरा, हमने लव को बस आप समझ ले अट्रैक्शन से अटैच कर दिया है। ठीक है, ठीक है ना, लव का अट्रैक्शन से कोई वास्ता नहीं है। ठीक है, इसका कोई, वो अट्रैक्शन टेम्पररी है। ठीक है ना। हाँ। मैं कहता हूँ जिस रिश्ते के अंदर ट्रस्ट नहीं है, जिस रिश्ते के अंदर रिस्पेक्ट नहीं है, जिस रिश्ते के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है, उसमें लव नहीं है। क्या बात है। ठीक है, चलो आगे। अब आपने इसको अट्रैक्शन से ठीक है। अटैच किया है ना सर, मैं एक बात कहूँगा, अट्रैक्शन से अटैच किया, अट्रैक्शन सब्जेक्ट टू फिजिकल अपीयरेंस है। बिल्कुल ऐसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने देखा है? नहीं, देखिए, जो हम उनसे प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं। बहुत अल्लाह की करते ज़ात को हैं। हमने देखा है, नहीं,
اور اس طرح سے جو ہے نا اہل بیت کی سر نے بات کی, ہم دیکھا ہے ہم نے ان کو, لیکن اس کی جو محبت ہے اس کو میجر ہی نہیں کیا جا بیان سکتا, نہیں کیا جا سکتا میجر ہی نہیں کیا جا سکتا. سر. اس حد تک ٹول ہی نہیں ہے. ٹائمز آف امریکہ لکھتا ہے کہ پاکستان کے لوگ سب سے زیادہ مذہبی جنونی ہیں. ہاں, ایکسٹریمسٹ ہے بالکل, ہے نا. بالکل. اور جب یہ میں نے آرٹیکل پڑھا تو میں نے کہا یار یہ تو بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے. میں چونکہ بہت ساری مسلم کنٹریز میں گیا ہوں, ملیشیا گیا, انڈونیشیا گیا, وہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہے. وہاں پر بس سب کا ایکول رائٹس ہے, اور بہت ساری کنٹریز میں تو اسپیکر کا ہی کانسیپٹ نہیں ہے. تو میں ان کی نیشنل مسجدوں میں نماز پڑھنے گیا تو میں نے کہا بھائی وہ بڑے بڑے اسپیکر بولے نہیں یہاں سب کے نہیں ہے تو ان کے بھی نہیں ہے. تو میں نے کہا یہ تو ملک تو نہیں کا ہے. کہہ رہا بس, میں نے کہا پھر سب سے زیادہ استاد ہم لوگ ہیں, ہم لوگ مرنے مارنے پہ آ جاتے ہیں. یہ محبت کہیں, ایکسٹریمزم کہیں, ٹھیک ہے آگے بڑھ جاتے ہیں. شیخ صاحب یہ بتائیں کہ کوئی فیوریٹ سیاست دان آپ کا؟ سر میں کیونکہ نام نہیں لے بچپن سکتے. سے ہی میں مطلب سیاست کا حصہ جو ہے میں نہیں رہا, تو اس لیے یہ تھوڑا سا میرے لیے مشکل ہے بتانا, ڈیفیکل ہو جائے گا. لیکن میں although I'm the Sindhi speaking بٹ میں اپنی یونیورسٹی میں بھی جو ہے وہ میں اے پی ایم اوسو کا حصہ رہا. تو لوگ مجھے کہتے تھے بھائی آپ جو ہے, تو میں نے کہا میرے لیے تو اگر تھوڑا بہت تو جو یہاں پہ نہیں ہے جس کو تھوڑا بہت کہیں تو میرے جو نہیں جس کو بانی کہتے ہیں وہ آپ کے فیوریٹ ہیں؟ سر بانی ایم کیو ایم. ہمیں ابھی اسی پہ ہی بات آ رہا تھا, کیونکہ مجھے اتفاق سے ایم کیو ایم کے ساتھ سے بہت نزدیکی میرے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ, کیونکہ وہ میں جنرل پبلکلی بول نہیں سکتا کچھ, پر تھوڑا سیکورٹی ریلیٹڈ مجھے ان سے کام کرنے کا موقع ملا. اور میری بانی ایم کیو ایم سے ٹیلی فون پر بات بھی ہوئی تھی, تو جو ان کو میں نے تھوڑا بہت اسٹڈی کیا, اچھا, تو وہ تنظیم سازی کی مجھے بڑی جو ہے مطلب تنظیم سازی بڑی ان کی, مطلب ان کی شخصیت سے آپ انسپائر ہوئے, آپ کا یہ کہنا ہے؟ ہاں, یا ان کے جو میں نے کوٹس دیکھے اور جو چیزیں تھی, تو میں چلے کہا جا سکتا میں کہا جا سکتا ہے کہ میں ان کو تھوڑا پسند کرتا ہوں. چلیں جی, بڑے سے ہمارے جو اور چیزوں سے ہٹ کے جو ہے ہاں شیخ صاحب جو ہیں, چلیں آپ نے اپنی پسند کا اظہار تو کر دیا سر. اظہار پر آزادی ہے سر, بول سکتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کوئی فیوریٹ عالم دین کہ جس کو آپ سنیں آپ کو لگے کہ یار اس کو سننا چاہیے, یہ روح کو تسکین دیتا ہے؟ سر محترم عثمان تقی صاحب. سر ٹھیک ہے, مفتی عثمان تقی صاحب کو میں سنتا ہوں. آپ کا بچپن کیسا تھا؟ شرارتی تھے, خاموش تھے, یا صرف ایک کونے میں بیٹھ کے لکھتے تھے اور پڑھتے تھے؟ سر میرے خیال میں جینیس لوگ اتنے زیادہ لکھتے پڑھتے نہیں ہیں. اوکے, بالکل صحیح ہے. ٹرو سر, اسٹرانگلی ایگریڈ. سر بہت زیادہ شرارتی, او مائی گاڈ, بہت زیادہ. اور آوارہ پن تو نہیں تھے نا سر؟ نہیں, آوارہ پن پھر تھوڑا الگ ہو جاتا ہے. سر ہم شرارتی تھے نہیں, ہم شرارتی ہیں. کیا بات, مطلب میں آپ کو ایکسٹریم بتا دیتا ہوں. آپ شرارتی کی بات کر رہے, جہاں تک یہ بات آ گئی تو مجھے شرارتی کے پوائنٹ آف ویو سے الٹا لیٹا کر شرٹ ریموو کر کے, کیونکہ ہم لوگ گاؤں سے تھے تو آگ لکڑیوں کی آگ ہوتی تھی, تو اتنے شرارتی تھے کہ وہ میری والدہ جو ہے وہ جلی ہوئی لکڑی لگا کر پیچھے جو ہے, اور لگانا نہیں دبا کے وہ لگاتے تھے, تو ہم اس لیول کے شرارتی تھے سر. اور ٹیچروں کی مار تو بس وہ تو میں آپ کو کیا بتاؤں جو ہے, تو یہ تک بھی ہم نے جو ہے وہ برداشت کیا ہوا, جو آج کل کے بچے تو سوچ بھی نہیں سکتے ہیں, سوچ بھی نہیں سکتے ان کی سوچ ہی نہیں ہے. اگر ماں باپ ایک تھپڑ بھی لگا دیں آج کے بچے کو تو وہ اتنا روڈ بیہیو کرتے ہیں, اور ہم نے مارے کھائی ہیں. ارے سر اور تو نہیں, ہم نے تو آپ نے ان سے پوچھا کہ ہم نے تو ایک محلے میں کسی لڑکی کو یوں دیکھ لیا تھا تو 6-8 لوگ, چاچا, ماما, نانا, دادا, باپ سب نے مارا تھا. بتائیں. ہاں, تو ہم سر ابھی بھی شرارتی ہیں. جینیس لوگ کم پڑھتے ہیں. یہ بہت زبردست, ہاں یہ بہت زبردست ہے. وہ شاید ایسا ہوتا ہے کہ وہ بس ایسے اٹھائیں گے, بکس کو دیکھیں گے, اچھا یہ ہے, شاید ان کے مائنڈ میں وہ بیٹھ جائے گی چیز, اور وہ کل جب ان کو آپ لیکچر لیں گے تو وہ آپ بولیں گے ارے اس نے تو پڑھا بھی نہیں تھا. سر میں اس میں ایک چیز ایڈ کروں گا, کیونکہ ایجوکیشن کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں. ایک شخص, میں پہلے ایک چیز کو رجسٹر کرا دوں, ایک شخص
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया कि या रसूल अल्लाह, मेरे अंदर हर बुरी आदत है, मैं अल्लाह पाक कमी पेशी माफ़ करे जो हमने वो सुना है, तो आपने फरमाया कि आप झूठ बोलना बंद कर दें, झूठ बोलना बंद कर दें। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है, इसका मकसद है कि एक चीज़ बहुत सारी चीज़ों के साथ लिंक करती है। अगर आपने झूठ बोलना बंद कर दिया तो इसका मकसद ये है कि आपकी 1000 खामियां ठीक हो जाएंगी, ये लिंक है। अब यहां पर आ जाती है, अगर आप स्टूडेंट को कॉन्फिडेंस दे दें तो जो उसकी लर्निंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी, जबरदस्त। तो अब एक आप उसको वो दे दें तो ये जो आप देखें जीनियस लोग कॉन्फिडेंट होते हैं, कॉन्फिडेंट मेरे अपने लिए तो खैर वो बात है सही, फनिंग में वो कही हम जीनियस का हम तो डफर लोग हैं। सही कहा आपने। तो कॉन्फिडेंस, आप उनको कॉन्फिडेंस दें तो उनकी जो कैपेसिटी वो बहुत बहुत बढ़ जाएगी, ये साइकोलॉजी भी कहती है, इसके ऊपर बड़ी अच्छा, कॉन्फिडेंस के साथ एप्रिसिएशन भी होनी चाहिए, एप्रिसिएशन इज, क्योंकि वो दोनों चीजें जब मिल जाए ना तो मैं ये कहती हूँ आप स्टूडेंट मुझे उस साइंसदान का नाम, मेरे ख्याल शायद थॉमस एडिसन की वो बात हो रही थी या कोई और, मुझे इस वक्त उसका नाम याद है ना, जब उसको स्कूल के निकालने के लिए उसकी वालदा को लेटर लिखा गया था तो उन्होंने लेटर छुपाया था, आई डोंट अरस्तु थे या बल भी ईजाद किया, तो बाद में जब उसकी वालदा की वफात के बाद वो लेटर निकला तो उन्होंने उसको स्कूल से निकालने, तो उन्होंने कहा कि जी आपको जो है स्कूल से इसीलिए निकाला गया है कि वो बेसिकली वो कह रहे हैं कि जी आपकी लेवल बहुत बड़ी है। बताएं। बहुत बड़ी बात, अभी मैं रिसेंटली एक जो है इसका एक रनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि एक रनर था, वो भागा और उसने कहा कि जी मैं जो है अब थक गया हूँ, तो कहते हैं कि उसके बाद एग्जैक्टली उसके पीछे जब कुत्ता भागा तो कहते हैं वो प्रीवियस स्पीड से ज्यादा भागा वो, तो कहते हैं कि उसके अंदर फिजिकल कैपेसिटी तो थी लेकिन वो यहाँ से थक चुका था वो, और यहाँ से आप अपने आप को खुद थकाते हैं, आप खुद थकाते हैं। देखिए आप आपकी जिंदगी में जितना अगर कोई भी प्रॉब्लम है माइनर या मेजर, अगर आप उसकी डीपली स्टडी करेंगे तो आप खुद जिम्मेदार हैं उसके, सही खुद जिम्मेदार है, कोई और जिम्मेदार नहीं है, आपने प्रोवाइड किया है अगले को जो है। तो मेरे हिसाब से तो आप देखें, आप जाएं, अब आप देखें, मेरे ख्याल शायद फिनलैंड से, आई डोंट नो मैं राइट और रॉन्ग, एग्जाम सिस्टम जो है वो खत्म कर दिया उन्होंने, एग्जाम नहीं होगा, ओके ठीक है ना। मैं इस एजुकेशन के साथ एक आपकी वो बात कंटिन्यू, ये जो गुल प्लाजा का सान्या हुआ, सर मेरी नज़र में गुल प्लाजा का के अंदर जो ये कैजुअलिटीज हुई हैं ये आग की वजह से नहीं हुई हैं। ओके, जारी तो आग, देखिए हम तस्वीर का दूसरा रुख नहीं देखते, ठीक है, मैं कहता हूं ये आग लगी क्यों, इसकी वजह से हुआ है। यस, अकॉर्डिंग टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज किसी फूलों की दुकान से वो इनिशिएट हुई है। सर 500 रुपए का फायर बॉल है, आप रखें ना, अब आप करोड़ों रुपए खर्च करेंगे, अरबों रुपए खर्च करेंगे, उसका माइनर सा एक पार्ट 5% भी अगर आपने प्रिकॉशनली ये लिए होते तो ये इंसिडेंट ना होता, नहीं होता। एक ही चीज़ सर, पेपरा की हम बात करते हैं, पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है, जो टेंडरिंग्स वगैरह ये वो सारी चीज़ें जो होती हैं उसके अंदर एक शिक है कि इमरजेंसी अगर आ जाए तो आप उसके रूल्स को बाईपास कर सकते हैं। मैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, बल्कि मैं कहता हूँ जहां जहां दुनिया में हमारा ये मैसेज आ रहा है, जहां इंसान की जान है वहां कोई रूल नहीं है, कोई रूल नहीं है और बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए, कोई रूल नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। क्यों आपने अभी बात की पाकिस्तान एयरफोर्स की, आखिर आपको क्यों लिखना पड़े, आपको पता चला गुल प्लाजा में आग लगी है, आपको सिंध हुकूमत किसी सिटी किसी के बाद आग लगी है, आप वहां पर जाकर आप पानी भर सकते, बाद में रूल्स को देखा जाएगा। पूरी दुनिया से इंसान की जान में कर रूल्स दिया खत्म सर, कर दें आप। शेख साहब ने तो इख्तिताम कर दिया, और एक हमारे यहाँ बैठे हुए इंजीनियर मोहम्मद अली शेख साहब ने शायद वो जो तमाम हमारे पॉलिटिशियन हजरात थे जो आइनी मामलात पे अवाम को उलझा रहे थे, उन्होंने मसला ही हल कर दिया कि जब आ जाए जान की बात तो फिर आप ना देखें सूबाई हुकूमत, आप ना देखें वफाकी हुकूमत, आप ना देखें कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के इख्तियारात क्या हैं, आप फिल फॉर जाके किसी की जान बचाएं, उसके बाद देखा जाएगा, क्योंकि वो जान दोबारा नहीं आ आनी। सकती। सही, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद सुबह सवेरे वीनस के साथ सुनहरी रोशनी के साथ साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा।
सुबह सवेरे वीनस के साथ सुनहरी रोशनी के साथ साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन खुशी के साथ ऑन एयर आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। ब्रेक के बाद से खुशामदीद। खुशामदीद। शायद थोड़े से हम ये महसूस किया कि हम बड़े सीरियस हो गए, थोड़ा सा आ जाते हैं ना सर, जॉली मूड बनाते हैं, और क्योंकि नौजवान बच्चे बैठे हैं ये हिस्ट्री बन जाता है ना। कल जब ये शादियां कर लेंगे, इनके बच्चे जवान हो जाएंगे, फिर ये शो निकाल के देख रहे होंगे, ये देखो उस वक्त तुम्हारे अब्बू कैसे लग रहे थे क्या बात। ये देखो उस वक्त भी तेरा बाप ऐसा बोलता था। डिफरेंट माइंड और बहुत सारे सवालात जन्म लेंगे, फिर आपको अच्छा लगेगा अपने माजी को देखकर कि यार तब मैं ऐसा था, अब मैं ऐसा। आप खुद का भी एनालाइज करते हैं। सर मुझे गाना सुनना है आपसे। गाना? हाँ गाना है भाई, सारा दिन ही गाना तो सुनते हैं। मैं- हाँ अगर आपके शो में गाना नहीं हुआ हाँ तो फिर क्या हुआ? एक आधा मिसरा हाँ एक आधा मिसरा सर, एक आधा ये अभी मिसरा। बहुत बड़ा मशहूर चल रहा है, कौन काविश। सा? हाँ उसका आपने सुना हो? प्लीज। तेरे प्यार में हाँ दिल हार के वाह। मैंने क्या पाया क्या कमाया, वो तुझसे सीखा तुझसे पाया, मैंने तुझे दिल में बसाया, क्या बात। मेरा रहा ओ आसमां क्या क्या किया। क्या बात है। माशाल्लाह, जबरदस्त। माशाल्लाह। इसको कहते हैं कॉन्फिडेंट। आप में ये जो कॉन्फिडेंट पता है कब आया? ज़्यादा जब आया कि जब आप शेख साहब की छतर छाया में आए। मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि जो सर की पर्सनालिटी है, जो सर के एक्सपीरियंसेस हैं, हमसे जब आप पूछेंगे ना, क्योंकि हम गुज़िश्ता 10 साल से इस इन सीटों पर डिफरेंट चैनल्स पर हम लोगों के साथ बैठ रहे हैं ना, और तमाम मकातब फ़िक्र के लोग, पॉलिटिशियंस। मैं रात को करंट अफेयर का शो करता हूँ, तो वहाँ पे सारा दिन पॉलिटिशियन से सारी रात लड़ना झगड़ना, वहाँ पे हमारा वे ऑफ जो टॉकिंग है वो चेंज हो जाता है। ये नहीं होता। एग्रेसिव आप वो पर्सनैलिटी देखेंगे, आप बोलेंगे यार ये तो कोई और है। तो जिसका जो काम है ना उसका एक्सपर्ट होता है। अब सर डिफरेंट टीवी शोज में जाते हैं, यस पता नहीं कितने होस्टों से मिलते हैं। ये बेहतर आपको तर्जिया देंगे बाहर जाके, अगर आप इनसे पूछेंगे। बिल्कुल ऐसा ही। आप ज़्यादा लोगों में इन्वॉल्व कम है लेकिन कम बोलते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। जी मैं बोलता तो हूँ लेकिन फ्रेंड सर्कल में सिर्फ। क्यों? ओ क्या बात है। देखिए कैसे मैंने पकड़ा है आपको। जी बिल्कुल सही बात। क्यों क्यों कम बोलते हैं शाय मेरे हैं भाई? थोड़े से। अच्छा बोलते हैं आप। जी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन फ्रेंड सर्कल जो है ना वो कंफर्ट ज्यादा देता है। हाँ, इसी वजह से इससे बड़ा कंफर्ट क्या? अभी तो बिल्कुल है कंफर्ट। हाँ, इससे बड़ा relax कंफर्ट हो क्या? गए, अभी कह रहे हैं। मैंने तो आपको महसूस ही नहीं करने दिया कि आप टीवी शो पे बैठे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने तो आपको आप ड्राइंग रूम में बैठे ये हैं। आपकी बहुत बड़ी खूबी है। अच्छा पता है ये क्यों किया? क्योंकि मैं इस चीज को मीडिया इंडस्ट्री में डिसलाइक करता हूँ। बिल्कुल सही। सही। जो मीडिया पर्सनैलिटीज के एटीट्यूड हैं मैं उनको डिसलाइक करता हूँ। जी। मैंने इन चीज किया कि मैंने कंडेम किया। मैंने बोला यार ये आप लोग ना किया करो। आप कोई ऊपर से जितना आप उतरे हुए उनको खुदाई easy मखलूक नहीं छोड़ेंगे हो। उतना ही वो अच्छे है ना? से बात कर सकते हैं। अब आपको ऐसा लग रहा है ना कि हम भाइयों की तरह बैठे हैं, भाइयों की तरह बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है कि दोस्तों जैसे यारों फ्रेंड की सर्कल है तरह। वही। दोस्तों यारों की हाँ, तरह। दोस्तों यारों के अच्छा साथ ही बैठे। क्रिकेट खेलिए कभी? जी बिल्कुल खेलिए। बैट्समैन है, जी बैट्समैन है ना? बॉलिंग नहीं? बॉलिंग करता हूँ लेकिन स्पिन बस फास्ट नहीं। अच्छा कोई लड़की वड़की बहुत पर्सनल कोई सवाल जिंदगी है। में क्या मंगेतर? बात है। हम shocked। मंगेतर है? जी हाँ जी जी मंगेतर है। जी जी सिंधी है वो आप। जी जी बिल्कुल। अच्छा फिर बात ये है वो पढ़ने देती है? हाँ हाँ जरूर। तंग नहीं वो भी करती? पढ़ती होंगी ना। नहीं एक होता है ना कि यार बस मुझसे आपने 2 घंटे बात करनी है, 4 घंटे करनी है, रोज और वो बात आपके करनी है। पढ़ने का टाइम हो, फिर क्या होगा? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, पढ़ाई अपनी जगह होती है। मैनेज बात कर अगर- लेते हैं? हाँ मैनेज कर लेते हैं बिल्कुल ऐसा ही है जैसे। मुझे आपका यहाँ से दिल नजर आ रहा है धड़कता हुआ बाहर आ रहा है। नहीं नहीं ऐसा कोई है। अच्छा नहीं है? चले ठीक है सर एक चीज में ऐड करूंगा। जी। आपने से सवाल पूछा कि वो आपको पढ़ने देती हैं, ठीक है, वो तो यकीनन पढ़ने देंगी। मैं इनको कहूंगा आपने भी उनको पढ़ने देना है। क्या आप उनको पढ़ने देते हैं? ये सवाल होना चाहिए था। ये पढ़ने देना है। नहीं नहीं बहुत माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत बच्चा है और माशाल्लाह बड़ा वेल अब मैनर्ड। मैं आता हूँ राजा साहब के पास। जी राजा साहब की नाम ही शख्सियत- ऐसा है सर। राजा Decent साहब है, ये की decent है। शख्सियत देख के मुझे क्या नजर आ रहा है इनका आगे फ्यूचर?
وہ تو اللہ تعالیٰ ہماری نیک خواہشات ان کے ساتھ ہیں. ان کی پرسنالٹی دیکھ کے مجھے ایسا لگ رہا ہے ان کو بننے کوئی بڑا CSS آفیسر یہ SSP کی شکل میں مجھے نظر آ رہا ہے. بالکل صحیح. بالکل صحیح پہچانا ہے آپ نے. سر کیا بات سر آپ میرے تجربے کو داد دیتے ہیں. سر میں بھی تھوڑی دیر میں یہی بات کرنا تھا کہ آپ کہاں ان کی باتوں میں پہنچ گئے اور پھر بھی کہہ رہے کہ کمفرٹ زون نہیں ہے. اس سے بڑا کمفرٹ زون اور اس سے بڑا سر میں یقین سے کہہ میں نے سکتا تو ہوں بیٹھے بٹھائے ان کو SSP بنا دیا. سر میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر ان کو نہ پتا ہوتا کہ یہ لائیو شو چل رہا ہے تو یہ نہیں کر. میں اگر ان کو لے کے چلیں جی ساجد صاحب سر وہ تو چھوڑیں کہ ہمارے ہاں تو بدقسمتی ایک اور آپ کو پتہ نہیں فیس کی آپ نے نہیں کی. پہلے ان سے انٹرویوز ہوتے نیچے ہاں اور وہ جو صاحب کرتے وہ میں نہیں ہوتا کوئی اور ہوتا اور وہ اتنے بھونڈے اسٹائل میں آ کے ان سے سوال کہتے یہ کہتے بھائی ٹھیک ہے ہم بیٹھ ہی نہیں تمہارے ٹی وی شو میں. بالکل سر. تب ان کے یہ ریمارکس ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں میں نے ختم کی. میں نے کہا وہ بھائی آپ کون ہو. چانس ملنا چاہیے بولنا چاہیے بچوں کو. وہ خود کو پروڈیوسر کہلواتے ہیں ہماری انڈسٹری میں. میں نے وہ ان چیزوں کو ختم کیا ہے. بالکل صحیح. وہ پروڈیوسر پہلے جا کے آپ سے انٹرویو کرتا مجھے پتا بھی نہیں ہوتا اور پھر آپ کو وہ سکھاتا نہیں آپ نے بیٹھنا ایسے ہے اور آپ نے باڈی لینگویج فیئر پیدا کرتا ہے. ہاں اور آپ کا کیمرہ یہ ہو وہ آپ کو اتنا پریشان کرتا کہ آپ کہتے بھائی یہ کہاں آ گیا. بالکل صحیح. بالکل. تو ان چیزوں سے سر میڈیا کے لوگ ان چیزوں سے دور بہت رہیں. سارے مختلف چینلز کیا پہ بھی آپ کو ملتا ہے ان لوگوں کو پریشان کر کر اگر آپ کسی اچھا کانفیڈنس اور کم ہو جاتا ہے جو میں آپ کو کہہ اچھا میں اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں. آپ جہاں جس میٹنگ میں جا رہے ہیں جس پرپس کے لیے جا رہے ہیں آپ اس کو جتنی زیادہ اہمیت دیں گے اتنے رزلٹ کم آئیں گے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا ان کے بات اچھا ہاں سر کمپلیٹ کریں نا پھر کیا بننا ہے. سر CSS ہولڈر ہاں CSO آفیسر ہے بننا ہے. مجھے تو اب یہ لگ رہا ہے کہ آپ سائیکولوجسٹ ہیں. کیا بات ہے سر بڑی پوائنٹ والی بات کی. یہ ہے ایکسپیرینس نا ہے. زبردست. والی بات کی. جی سر یہ ایکسپیرینس ہے. گروپ میں ہوتے ہیں تو میری زیادہ تر یہی ان سے بات ہوتی ہے سب سے کہ مجھے یا تو کسی فورس میں جانا ہے یا تو CSP بننا ہے یا تو PCS کروں گا. یہی میرا گول ہے. ویسے انشاءاللہ آپ لوگ بہت ترقی کرو. میں آپ کی ایک بات شاید میں نے آپ کو کل پرسوں بھی کہی تھی. میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ جو آپ نے بننا ہے اس کو آپ نے عادت اڈاپٹ کرنی ہے. کر دی ہے سر. کر دی ہے. اچھا تینوں کی پرسنالٹی بہت امیزنگ. آپ کی تو ہے بٹ آپ کے جو اسٹوڈنٹ ہیں نا وہ آپ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ کے گھر میں کون ہے CSP افسر. گھر میں کوئی نہیں ہے. بس میرے فادر جو ہیں وہ FIA میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں. انہوں نے تو نہیں کہا کہ بننا ہے. نہیں انہوں نے نہیں پریشر کہا. تو نہیں کسی قسم کا. میرے والد صاحب کی یہ عادت ہے وہ مجھے تھوڑا ایکٹیو رکھتے ہیں. مطلب کبھی کسی میٹنگس میں جانا ہے یا کہیں بھی جانا تو مجھے لے کے جاتے ہیں. تو زیادہ تر CSPs کے ساتھ میرا ہونا جانا ہوتا ہے. یا فورسز. کیا نام ہے آپ کے والد صاحب کا. نیاز حسین نام ہے ان کا. اوکے نیاز. چلے جی ایک سوال رہ گیا ہے. ان سے بھی تو پوچھے نا ان کو کوئی لڑکی پسند ہے. مجھے ان کا جواب سننا ہے. دے بھائی اب دے یار. نہیں مجھے کوئی لڑکی نہیں پسند ابھی تک. تو نہیں پسند ہے. مجھے پتا تھا اس کو نہیں ہوگی پسند اسی لیے پوچھا. کیونکہ اس نے افسر SSP بننا ہے نا یار. اس میں یہ معاملات نہیں چلتے. سر ایسا ہی ہے. بالکل دیکھیں وہ مان بھی رہا ہے. چلے سر کیا زبردست بات آپ نے کہی کہ مجھے پتا تھا اس لیے میں نے پوچھا ہی نہیں. چلے جی. اچھا سر آپ میسج دیں مجھے. پہلے ذرا ان بچوں کا میں میسج لے لوں. سر آپ کے پاس ہیں 20 سیکنڈ. جی میسج کیا دیں گے نوجوانوں کو اسٹوڈنٹس کو. نوجوانوں کو یہی میرا میسج ہے کہ جتنا ہو سکے آپ کو اپنا کانفیڈنس بلڈ کریں اور پڑھائی کے ہٹ کے جو اسکل ہے نا اس پہ زیادہ کام کریں. انگوٹھی کیوں پہنی آپ نے. انگوٹھی ایسے ہی وہ آج پہن لی نا شو کے لیے. نہیں ایسی پہنے. سر لگتا ہے کسی بیسٹ فرینڈ کا تحفہ ہے. اچھا لگتا ہے آپ کو پہننا. کیا بات ہے. اچھا لگتا ہے. آپ کے پاس بھی 20 سیکنڈ ہے. ایک میسج. سر میں ایک میسج دینا چاہوں گا 3 Idiots مووی کا. کیا بات ہے. عامر خان وہاں کہتا ہے کہ کامیابی کے پیچھے مت بھاگو, ایکسیلنس کے پیچھے بھاگو. تو پرفیکٹ نہ بنو. ایک تو اپنے آپ کو کنسسٹنٹ رکھو, دوسرا وہ کرو جو آپ کا دل کہے. قابل بنو. کامیاب نہیں بنو, قابل بنو. وہی ایکسیلنس والی بات. ہم نے سر کچھ فیلڈز بس ڈاکٹر انجینئر یہ وہ کچھ کر نہیں سلیکٹ. کیا بات ہے. انسان کا جو دل کرے وہ بنو. آپ جیسے آپ ابھی ایک اچھے اینکر بنے ہوئے. بات مجھے کوئی آنے نہیں دے رہا تھا اس فیلڈ میں. میرا جو گھرانہ ہے نا آپ کو سارا پیری گھرانہ. بولا ہم پیر مرید یہ کیا کر رہے ہو. اور میں نے بولا جاؤ یار مجھے اپنی ماننے دو کرنے دو. بالکل سر میں وہی کہہ رہا ہوں. میرا وہی میسج ہے نوجوانوں کے لیے جو آپ کا دل کہے وہ بنو. چاہے ایکٹر ہو, انجینئر ہو, ڈاکٹر ہو, آرٹسٹ ہو, کچھ بھی ہو. آج بھی کرکٹ کھیلتا ہوں. بالکل سر. دیکھو آپ کا میسج 20 سیکنڈ. میں یہ میسج دینا چاہوں گا کہ سوسائٹی میں جو ٹیچرز ہیں نا وہ سب محمد علی شیخ کی طرح ہونے چاہیے.
क्या बात है, ताकि जबरदस्त। बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़े, बच्चों के साथ वो कम्युनिकेट उस तरीके से करें ताकि बच्चा उनसे सही से घुल मिल सके या बात कर सके। ये पॉइंट है टीचर्स के लिए। फिर मैं एक आता हूँ example शेख साहब teacher के है यहाँ पे। पास कि जिस हम मीडिया के लोगों के यूजलेस एटीट्यूड की बात कर रहे थे, इस तरह का एटीट्यूड बहुत सारे टीचर्स में भी पाया जाता है। वो खुद को खुदाई मखलूक समझते Yes. हैं। ऐसा ना करें, ये आपको जेब नहीं देता। आप अच्छे दोस्त, अच्छे रूहानी बाप बनेंगे, बिल्कुल बच्चे आपसे कनेक्ट होंगे। अगर बच्चे आपसे कनेक्ट नहीं, मैंने किसी टीचर से कहा कि एक बच्चा नहीं पढ़ना चाह रहा, उसको कैसे पढ़ाओगे? तो उसने मुझे कहा, मैं ऐसे बच्चों को पढ़ाता ही नहीं हूँ कि जो पढ़ना ही ना चाहें। मैं ऐसों को पढ़ाता हूँ जो पढ़ने में। मैंने कहा, और मैं अगर टीचर होता तो मैं उसी को ही पढ़ाता कि जो ना पढ़ना हो। एग्जैक्टली। तो तब मैं कहता कि आई एम अ गुड टीचर, Exactly. कि वो तो पढ़ता ही नहीं था, मैंने उसको हीरो बना दिया। एग्जैक्टली। अब मैं लूंगा सर शेख साहब से मैसेज, ये सोसाइटी के हीरो ये हैं सर, क्या देंगे? सर मैंने ब्रेक से पहले एक बात कही थी कि गुल प्लाजा के हवाले से मेरी नज़र में ये बहुत टू बी वेरी ऑनेस्ट, आजकल जो ये चीज़ें इन्वेस्ट ये कैजुअलिटीज़ आगे की वजह से नहीं हुई, ये कैजुअलिटीज़ आपकी ट्रैफिक सिस्टम की वजह से हुई। आपने उस प्लाजा के अंदर जो पैसेजेस को सही तरीके से आपने फ्री रखा उसकी वजह से हुई, प्रिकॉशनरी मेजर ना लेने की वजह से हुई, और आपके ये जो प्रोसीजर्स हैं उसकी वजह से हुई। आग तो हर घर में जलती है, आग हर घर में जलती है ना। तो ये नहीं कि वहां से वो एक चिंगारी उठी, ये इसकी वजह से हुई। तो इन चीजों को आप ये देखें, प्रिकॉशनरी मेजर्स को आप ये देखें, तो इंसिडेंट बहुत कम होना शुरू हो जबरदस्त जाएंगे। मैसेज आपने दिया जी। लास्ट में, बहुत अब जबरदस्त। उसके बाद मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इस चैनल के थ्रू एक ऑफर कर रहा हूं कि मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इस सिक्योरिटी डिजाइनिंग्स और इस चीज़ के हवाले से। कहीं पर भी एक घर से लेकर पाकिस्तान की सबसे बड़ी बिल्डिंग के लिए भी आपको कोई सिक्योरिटी, सेफ्टी, इसकी वजह से किसी किस्म की कोई डिज़ाइनिंग, कोई इस किस्म की चीज़ है, विदाउट एनी फाइनेंशियल इंटरेस्ट, 1 रुपया भी नहीं चाहिए मुझे इस मुल्क के लिए। हाँ, मुझे बेसिक जो उसकी फैसिलिटीज़ होती हैं वो आप प्रोवाइड करें, तो आपको कभी भी ज़रूरत पड़े तो आपको इस चैनल के थ्रू मेरे डिटेल्स मिल जाएंगे। और मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इंसानों की जानें बचाने से ज़्यादा कोई भी चीज़ नहीं है। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बेसिक फैसिलिटीज़ आपने। और क्योंकि मैं कुछ वजूहात की वजह से कुछ प्रोजेक्ट्स का डिस्कस नहीं कर सकता, मैंने बहुत सारी इस तरह की चीज़ें की हैं। तो हमने ये बस कोशिश करना है कि बस ये हमारे मुल्क का आखिरी वाक़या हो। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का, बहुत शुक्रिया आप स्टूडेंट्स का, शेख साहब का, आप लोगों ने टाइम दिया। और हमने कोशिश की कि मस्बत बात करें, और कोशिश की कि यूज़लेस एटीट्यूड का मुजाहरा हमेशा नहीं करते, इस बार भी नहीं हुआ, और इस चीज़ से बचें। शायद मैं तो एक ये भी कहता हूँ कि वो शायद आप इसलिए करते हैं कि शायद आप ना अहल होते हैं। एक इसी उम्मीद के साथ मेरा मुख शादो आबाद रहे, साजिद से इजाज़त कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। दरख्तों में परिंदे गुनगुनाते हैं, नरम ठंडी और पूरा सुकून हवा का झोंका, चाय का एक कप, इतनी छोटी मुस्कुराहट छुपाने के लिए।